Okay, good evening, everybody. I welcome you all to today's study group discussion. The topic for today is dematerialization of shares for private companies. It's relatively a new law that has come up in October 2023. So to give details on the same, we have with us our learned faculty. For the introduction of today's speaker, I would like to invite C. Rishabh Chaudhary, our core group. Good evening, everybody. Thank you for giving me this opportunity. Today, I would like to introduce a speaker, FCS Sanjeev Lata Samdani. Her qualifications are FCS, ICW, LLP, and MCOM. She has over 30 years of experience of secretarial and legal professional experience in across fields. She's also serving as a independent directors in listed and public limited companies. And she's also associated with various professional and social organizations. And she's also worked with listed companies like Ganesh Benzo Limited, SRM Energy, and Jaipur Hospital. We welcome you, ma'am. Please take the mic. And we would request CA Purva and our past convener CA Jayesh Bhai to present the moment of token to our speaker today. So Purva, she is the new member of JB Nagar. So it's the first meeting. We all will continue. Welcome. Nice. Just check on some. नहीं PPT PPT चाहिए ना मैं Zoom पे चेक कर रहा हूँ स्लाइड्स चेंज करके देख लेते हैं दिख रहा है ठीक है यस लेट्स स्टार्ट First of all, thank you, each and everyone, and good afternoon. And this is the latest amendment, as already informed, and we are just starting our discussion. And we will talk in a very this way कि आपस में communication चलता रहे और चीजें solve होती रहे साथ में. कुछ specific queries होंगी, so that we will take afterwards. ठीक है? Dematerialization of securities. Mandatory for the private limited companies. This is the today's our topic. Today we are going to explore this latest amendment, the process, implications, and consequences, compliances, or moreover, as each amendment comes with lot of opportunities, how as a professional we can more and more get the work, or how it is different from the work what we are doing is now the part of our discussion we will go through. Introduction. This particular section is introduced on 27th October 2023. It is known as a PS Regulation 2014 Second Amendment. It is informed or it is notified by GSR 802E. This is mandatorily required the private limited companies to demat their shares within a period of 18 months. But there are some exemptions. We will go through with all this. Dematerialization is not a new thing for all of us. We know how it is. We already gone through with this process in 2018 with our public limited companies.
Rule 9B is specifically added in the PACE amendment rules. And these rules have mainly 6 points. One is every private companies to whom these rules are applicable. Every private companies to whom these rules are applicable can issue the securities. The word is securities. That means as per SCARA, all shares, debentures, preference shares, whatever is supposed to be now issued in the dematerialized form only. Second is that private company to whom this is applicable will facilitate the dematerialization for all of its securities. That private company, now we are coming to the exemption part, to whom this rule 9B is not applicable. This is the private limited company which come under the definition of small companies. Same small companies we will go through in the next slide, but if you have already gone through with that, the small company is already defined under section 2 sub 85 subsection. So those companies are exempted to follow these rules 9B, and this rule is supposed to be complied with within 18 months. That 18 months start from the 31st March 2023 financials. Means when this came, this rule started or notified on 27th October 2023, almost 6-7 months was already gone. September, March balance sheet, September you at least by September you adopted it. You follow that rule now in October to what is the last date comes is 30th September 2024. On or before, you should comply with this rule that all the private limited companies to whom these rules are applicable make their securities in dematerialized form at their end. They should complete all the relevant formalities. Now, as the few companies are exempted, small companies, I will use the applicable company in all my sentences now. What it says, the third point says, if an applicable company goes for any public offer means any offer of issue within, because we have to always follow the private limited companies definition. It cannot go for the public means whenever it go for the offer of issue, it may go for the buyback, it may issue the bonus or right. But before going for any of this procedure, if it applies before the last date, it is compulsory to dematerialize the shares. Means after 27th October 2023, when these rules notified, if a company is going for any kind of issue purpose, it comply the dematerialization procedure, then only they can issue. Dematerialization procedure, to comply or to go for it, it is necessary that all its KMPs, promoters and directors shareholding in dematerialized form. Then only that company can proceed for the dematerialized issue of those equities. Now, this is the third point we have done. Fourth, 9B4, because 1, 2, 3, all the 3 rules, 9B is for the company to comply with. In 4th rule, what is happening? Now, security holder supposed to comply with it. This is a full frame, you cannot go this or that way. You should comply with it. This is what the framing, it is done like that. Every holder of the securities
of that applicable company if they intend to transfer its shares. First of all, please go and dematerialize your securities now. Otherwise, you cannot or company cannot accept it. Second, 4B says for security holder, one is point is transfer, what other point is subscription or subscribe any of the securities. Here the challenge is if your shareholder wants to subscribe any of your securities, what company is going through with. It may be in any kind of bonus, rights, private placement, even buyback. We already spoken that company should take care of it. If even a holder is going to subscribe that, it is necessary that company should ensure that all his previous holding is already dematerialized, because company can now issue only in dematerialized form. So that holder must have the dematerialized account and then the company can issue it. Company is now required to ensure for the security holder that dematerialization is done, all the securities can be issued in dematerialized form. Fifth point says now up to fourth regulation we were directly going through, which is specifically mentioned. Fifth rule says you go and follow the rule 9A for subclause 4 to 10. Subrule 4 to 10, which was mentioned in 2018 for public companies, supposed to be taken care of by these private limited applicable companies. This we will go after this one. This rule is not applicable to the small companies. And further, it is not applicable to the government companies. This is all till now. Government companies anyway everywhere exempted because they have their own laws and rules. I already said now we will not say private company, we will say applicable company, because many places it is used this word. As we have already seen in regulation 2, 9B, subrule 9B of subrule 2, we have already seen that small companies is totally exempted from the definition. So now what is the small companies? First thing, it will be a private company. Public companies are already out of purview, so it should be private company. But there is 2023, the amendment came, and that amendment says if the paid up capital shall not be more than 4 crore of that private company, and or the turnover of that company shall not be more than 40 crore. These type of companies will come in the definition of small companies. So whatever the companies you are dealing, if you are in that parameter, you are exempted to go for the further compliances. At the same time, One is nothing to do with small company. pardon? As far as loan is concerned, in the accountable here for the small company sectors. See, small company definition is very clear. Yes. Further, in a small company's definition, even these are the parameters. But if it is a holding or a subsidiary company, if it is a company registered under Section 8 company, or it is a body corporate or a company governed by any special act, means
government company or Nidhi companies, those companies are also not coming in definition of small companies. Holding subsidiary of any company, right? Yes, yes. Here is this. If there is a holding company outside India Hmm. and there is a subsidiary company set up in India which is 100% owned by the foreign corporate. Then to altogether different. Then to altogether different. Yes. What about both being a small It company? will be applicable. Because No. subsidiary holding company which covers all the companies. That's what I'm saying. It will not be small. It will not be regarded as small. Not a small company. So it will be applicable. What That about is, we are absolutely right for that. What about both being small, but even holding is small and subsidiary? Small is already exempted, so there is Not that. both you are What- saying both are exempt small. Holding is small Huh. and it has a subsidiary. Huh. But then you are, then subsidiary, there is an exception. If it is a holding company or a subsidiary, so both company will be out of That the. category is Small, perfect. No. Just definitions. You will have to comply. So they will have. Even this holding subsidiary is a very crucial or a gray area for this particular rule. And I am taking that rule in very last moment because lot of things is going to be happen. Okay. So firstly, we are just going through with the rule so we can discuss another. So rule 9(5), sub-rule 9(5) of rule 9B said that rest all rules of 9A will be applicable. 4 to 10 will be applicable as it is to these private companies. So rule 4, 9A. 9A is very much familiar to everyone. 2018, it was mandatory for the public limited company to have its securities in dematerialized form. We have already done it. Now, after 4 years, 2018 ke baad mein 2023, this rule came applicable now for this private limited company. So law very clearly says go and follow those rules. But for us who are dealing in the private limited companies, we once go through with this what this rule says. First, applicable company make necessary application to the depository. It's company responsibility to make its security to make their securities dematerialized, get ISIN number for its shareholders or security holders. So this particular rule says ki how many securities you are having, go with the depository, get a separate ISIN for all of your securities. Only after that your shareholders can go for it. So it is like a follow or observe rule regulations, what we have talked. Second, sub-rule 5, it says that applicable company shall ensure what? Timely payment of the fees. Obviously, you are taking the services of your RTA, depository, you pay them timely, then only they will provide. So it is a no. Next is always maintain security deposit of not less than 2 years. आपका जो भी 2 साल का फीस का है उतना डिपॉजिट आपने रखना है, ये रूल है. बाकी प्रैक्टिकल में आगे हम प्रोसेस में जाएंगे तब बात करेंगे कि हाउ इट इज. दीज आर द रूल्स एज पर लॉ. यू हैव ऑलवेज मेंटेन 2 years security payment fees applicable to 2-year deposits. And as and when SEBI or your depository come with the rules of what we have talked about, you should follow. This is rule 5C. Sub-rule 6 of 9A, it says, if you have defaulted in the payment, what?
that timely fees or deposit, what we have, then you cannot go for any issue. Obviously, they will not help you. Because now it is compulsory to dematerialize your securities. And आप वो नहीं कर रहे, तो nobody will help you. Simple. You have to follow the payment procedure. This is what the concrete of it. And next is whatever rules will come, we have already gone through in rule number 5 that इनसे related कोई rule आया तो आपने rule 5 में continue follow करना है. Otherwise जो rule बाकी के dematerialization के किसी भी law में है, depository, SEBI, Companies Act, you have to maintain and follow without default as and when applicable to you. हाँ, यहाँ पे rule number 8. This is a good opportunity or work. Although full is a good opportunity for the practitioners. For as a professional, जब भी amendment आता है, हमको तो opportunity है. We always wish कि नए amendments आते रहे और काम मिलता रहे. So this is the further permanent opportunity, page 6. अभी तक public limited companies के लिए था. Right. Change this. To 5. Sorry. We already discussed rule 6 and 7. So rule 9 is sub rule 8, which is what we were talking about, page 6. Till now तो public company के लिए applicable हो गया था, starting में limited, then public limited हो गया 2018 तक. Now it is further chance. Private limited companiयां तो बहुत सारी हैं, उसका statistics भी हम बात करेंगे. It's a continue opportunity, page 6, reconciliation of capital, basically, or audit of the capital of the company. How much issued, how much is came for the dematerialization, how is it still pending. This is what this page 6 says us. Compulsory is certification by the professionals. This is the permanent work. Every 6 months. Every 6 months आने वाला है. That's तो जो भी है आपकी private limited companies पक्के से ये काम हो गया हम. Second is important thing is that page 6, because it is a audit of the capital. If there is any kind of differences, your issued capital is not matching with your dematerialized capital. Immediately you are required to inform the depository. The whole scenario, if you just recall that time, the main cause of concern was that the dematerialized capital or issued capital was different. Then this thing came into the picture, reconciliation audit is must. This same procedure we are following here. If there is any kind of difference, before signing or certifying, we always have a look that is matching, no issue. Otherwise, immediately inform to the depository. यहाँ तक तो सब चल रहा है, कंपनी की बात हो गई है. इतना सब करने के बाद में, if there is a grievance of the security holder,
सिक्योरिटी होल्डर को किसी भी तरीके का कोई इशू है, कोई भी उसका काम नहीं हो रहा है, इफ he found with any intermediary any kind of problem, he or she or security holder will always inform to the IEPF authorities. They are the specific authorities assigned for this process. They can make the complaint over there. IEPF authority will look into it, and in consultation with SEBI, they can take a precautionary or a panel or action, whatever, for the what are the intermediaries? Depository, RTA or DP. These are the intermediary come into the picture for this whole thing. This thing is taken care of here. ग्रेविनेंस देख लिया हमने, आईपीएफ अथॉरिटी को बताना है, एंड रूल 10 हो गया हमारा एक्शन का. So dematerialization of shares mandatory for private limited companies. We have gone through with all the rules 9B as well as 9A, and बहुत clearly हो गया है, private companies पे applicable है, private companies which is not a small companies, और जो definition है private companies में small companies का, वो 31st March 2023 के financials पे जाएगा, और within 18 months हमको comply करना है 31st March के 2023 के बाद, और उसके हिसाब से 30th September 24 हमारा लास्ट डेट आ रहा है. तो उसके So March 24, we have to certify by 29th November. We must file ES6. नवंबर No. After demerger. After dematerialization. आफ्टर डीमेटेरियलाइजेशन. We have to demat by 30th September. हाँ, दिस इज द लास्ट डेट. 18 months. ठीक है, उसके बाद में अच्छा, उसके बाद में 6 मंथ आपको, सी दिस इज द लास्ट डेट. अभी किसी कंपनी ने पहले भी कर लिए तो उसको डीमेटेरियलाइज्ड हो गया ऑलरेडी, किसी को इश्यू लाना है, कुछ लाना है, तो आपको अभी 6 मंथ का पकड़ना पड़ेगा जब से किया है उसने, वॉट एवर द 6 मंथ इज कमिंग. ठीक है. Madam, when the issue rights here to the existing shareholder हाँ, in proportion. Sometimes some shareholders do not get the full number of shares, बिल्कुल. less than 50 or maybe more than 50% of the coupon, which fixed. यस. In that case, suppose companies issue one additional shares, then it will be a contradictory report or a combined, what you say? How to report that point? Ratio of issuing 1:3, हाँ, the shares is gone by 1 share more. हाँ. नहीं, बट आप कुछ भी कैसे भी इशू करेंगे, आपकी इशूड कैपिटल तो सेम ही रहने वाली है. इट मे बी टू द शेयर होल्डर्स का. एक शेयर बढ़ गया, 1 शेयर, सर आपकी इशू देखिए, एक का बढ़ेगा तो एक का कम भी होगा. वो नहीं हुआ, by default नहीं हुआ, हाँ. एक शेयर बढ़ गया. नहीं, यदि आप 3/4 पार्ट लेंगे तो जिसको 3/4 मिला है उसको आपको 1 देना पड़ेगा, तो किसी को 1/4 मिलेगा. 0.5 के बिलो है ना सर. किसी भी केस में इशूड कैपिटल से ज्यादा डीमेटेरियलाइज्ड हो ही नहीं सकता है, वेरी क्लियर है. आप इसको कैसे, वो एक केस में हो गया, तो उसकी रिपोर्टिंग में हम क्वालिफाइड करेंगे. वो एक शेयर बढ़ गया, इशू 3-4 शेयर मिलते हैं, उसमें किधर किधर हुए एडजस्टमेंट. इशू 0.5 का आपको भी नहीं कर दिया. फ्रैक्शन रहेगा, बट सिर्फ फ्रैक्शन देने का मेरे ख्याल से जो है अपना पैरामीटर वो ये है कि मोर देन 50% वाले को 1 दे देते हैं और लेस देन 50% वाले को नहीं देते. तो आपकी इशूड तो कभी ज्यादा नहीं हो सकती है. जब आपने इशू किया है उससे ज्यादा इशूड कैसे, एक सिंगल शेयर भी नहीं हो सकता है. बट एक्चुअली काउंटिंग किया फिजिकली वो एक शेयर बढ़ गया. नहीं, वो टोटली डिफरेंट केस है. नॉर्मल केस में ऐसा नहीं होता है, उसका डीलिंग फिर आपको अलग करना पड़ेगा. They should not do it. हाँ, And then what do you report it as 6? वो लॉस इज दैट. Loss is that. So all the whatever we have gone through is briefed over here. Obligation for dematerialization of securities, ये तो सारा हो गया है.
फाइनली अब क्या निकल के आया है, कंपनी का समझो पूरा डीमेटेरियलाइज्ड भी हो गया है शेयर। वी गॉन थ्रू विद द प्रोसेस, अभी जाएंगे और फाइनल आउटकम आएगा कि नाउ कंपनी को एक ही चीज हो जाएगी, पेज 6 करवाना है आपसे। और कभी भी कुछ कम ज्यादा हो गया है क्योंकि प्राइवेट कंपनियों की संख्या बहुत ज्यादा है। इंडिया में सबसे ज्यादा प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां हैं और बहुत पुरानी पुरानी है, विच ऑल टुगेदर नाउ कम, जो हमें पता भी नहीं है, नाउ दे विल चैनलाइज्ड। तो जब ये चीज होगी तो हमारे लिए क्या काम आएगा कि पेज 6 आ गया कंटिन्यूएशन में, एवरी 6 मंथ का काम आ गया। और दूसरा आ गया जो अभी आपने बताया है कि डिफरेंस है, नोटिस देना है, नोटिफाई करना है आपको। और कंप्लायंसेस का टाइमलाइन मैं बार बार वही बोल रही हूँ, 30 सितंबर की डेडलाइन आप जो भी प्राइवेट कंपनीज में डील कर रहे हैं, 30 सितंबर इज द लास्ट डेट टू कंप्लाई विद इट और टू टेक द प्रोसीजर। In this 18-month period, some company goes for winding up or NCLT or merger, demerger. सर मर्जर डीमर्जर का हम अलग से Then लेंगे। हाँ in that situation, how to do this process complete? Or नहीं, we have to ignore it? 30 सितंबर तक आपकी क्या पोजीशन है, आप एग्जिस्ट में है तो आपको करना पड़ेगा। In process or NCLT किसी dispute किया, फाइल किया, सूट फाइल। हाँ मैं वो सारे हमारे हैं, चैलेंजेस भी मैंने ऑलरेडी इन्फॉर्म किए हैं। एक इसीलिए मैं बोली कि कुछ चीजें हम करते जाएंगे और कुछ हम, क्योंकि ये ग्रे एरिया है, डीमेटेरियलाइजेशन, ये जो आपका मर्जर, अमलगमेशंस और बहुत सारी जैसी चीजें हैं जिसमें काफी कुछ होने वाला है। शेयर्स इधर से इधर जाएंगे तो वो प्रोसेस में आपका जो पीरियड है वो पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हाउ, तो वो हम लेते हैं उस चीज को। consequences in case of non dematerialization, डीमेटेरियलाइजेशन करना है रूल्स में हमने ऑलरेडी देखा है, यही सारी बातें देखी हैं। तो उसका नेगेटिव क्या हो जाएगा, रूल्स कहते हैं ये सब कंप्लाई करो, नहीं करना है तो क्या, एज ए कंपनी व्हाट विल बी द कॉन्सिक्वेंसेस, यू कैन नॉट गो फॉर एनी काइंड ऑफ सिक्योरिटी डीलिंग, और यू कैन नॉट, दूसरे शब्दों में बोलेंगे तो यू कैन नॉट गो फॉर एनी कॉर्पोरेट एक्शन, you cannot go for any, if you want to make private placement, bonus or any dealing with their securities, you cannot do now. It's just after 27th October 2003, नेक्स्ट डे भी आपने करना है तो आपको पहले ये जाना है, क्योंकि बैलेंस शीट ऑलरेडी बन गई है, 31 मार्च का सारा काम सितंबर तक हो गया है। यू आर वेल, एज ए प्रोफेशनल वी आर वेरी अवेयर कि हम स्मॉल कंपनीज में आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, एप्लीकेबल है तो पहले आप जाके ये सारा डीमेटेरियलाइजेशन करवाइए अपने केएमपीज का, डायरेक्टर्स का, प्रमोटर्स का, और फिर आप उनको अपनी प्रोसेस को आगे बढ़ाइए, नहीं तो आप नहीं कर सकते। एंड सेम थिंग इज विद सिक्योरिटी होल्डर, जो दोनों हमने बातें करी थी, ट्रांसफर नहीं करेगा, कंपनी कैन नॉट ट्रांसफर बिकॉज डीमेटेरियलाइज कराइए, वहीं से सारी प्रोसेस होगी आपकी। और सेकंड, the shareholder cannot go to subscribe any of these, are the things are very much fixed up. Now this is the main part of the whole scenario.
रूल 9B देख लिया, रूल 9B ने बोला 9A भी देख लो, तो वो भी देख लिया। रूल तो सारे समझ में आ गए, करेंगे कैसे, दिस इज द प्रोसीजर, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल, बिफोर एनीथिंग, प्लीज check your article of association. Is there a clause or power given in your articles that you can dematerialize your shares? 99% it is not there. मुझे लगता भी नहीं है प्राइवेट कंपनीज कोई अपने आर्टिकल खोल के भी देखती है, जरूरत ही नहीं है, बहुत सारी फैसिलिटी है हमको, हमारा काम तो डेली बहुत अच्छे से चल रहा है, पर अब खोलना पड़ेगा। बहुत सिंपल सा है, जाके चेक करिए, डिमेटलाइजेशन का क्लॉज रहता है हर पब्लिक कंपनी में, लिस्टेड कंपनी में, वो आपको एज इट इज अपने आप पे फॉलो करना है। उसमें अपने आप को ऑथोराइज करना रहता है कि जो भी मेरी सिक्योरिटीज है, किसी भी काइंड ऑफ सिक्योरिटीज में मैं हूं या मैं जाऊंगा, आई कैन गो फॉर डिमेटलाइजेशन। डिमेटलाइजेशन का क्लॉज आपको आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में ऐड करना है। ऐड करने के लिए वही हमारा पुराना जो भी पूरा प्रोसीजर होता है वो लेना है आपको। कॉल द शेयर होल्डर्स मीटिंग, EGM, AGM, चेंज इट, दिस इज द मेन पार्ट। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में आपको चेंज करने का जो प्रोसीजर है उसके साथ में आप दूसरे भी कर सकते हैं। एक्टिवेट तभी होगा जब फर्स्ट आपके सारे फॉर्म्स फाइल हो जाएंगे आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन चेंज करने के। तो ये एक बड़ा काम करना है, क्या क्या करना है ये सब पता चल गया। कैसे करना है उसके लिए सबसे पहले जाके अपना आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन चेक करिए। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में ऑथराइज होने के बाद में या सेम टाइम पे आप इमीडिएटली कर सकते हैं। क्या करेंगे, पास एन रिजोल्यूशन। डिमेटलाइजेशन के लिए आपको जो रिजोल्यूशन पास करना है वो पास करिए। उसमें पास करेंगे लिस्ट ऑफ द ऑथोराइज्ड पर्संस who going to deal with this procedure, उन लोगों के नाम को, और डिमेटलाइजेशन के लिए बोर्ड को अथॉरिटी, ये आपका बोर्ड रजिस्ट्रेशन रहेगा। फर्स्ट आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन हो गया, देन बोर्ड रिजोल्यूशन। बोर्ड रिजोल्यूशन के साथ में आपका लिस्ट ऑफ अथॉरिटीज ऑफ द पर्संस हु आर गोइंग टू डील विद इंक्लूडिंग द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, वो आपको करना है। उसके बाद में है, ये सारा चीज हो गया क्योंकि अब हम आर्टिकल से भी ऑथोराइज्ड हो गए, आर्टिकल ने पावर दे दी, बोर्ड में हमने ऑथोराइज कर दिया। नेक्स्ट स्टेप, प्रैक्टिकली साइमल्टेनियसली चलती है सब चीजें, फटाफट हो जाता है काम। सेलेक्ट द डिपॉजिटरी। दो ही डिपॉजिटरी है हमारे पास में, NSDL और CDS। यहाँ पे थोड़ा सा देखने वाला है, यदि आपके शेयर्स, इवन आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, आपने किसी बैंकर को या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को दिए हैं, तो NSDL में आपको डीमेट का आईजीन लेना, एप्लीकेशन करना जरूरी हो जाता है। जनरली सब बैंक्स के और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के अकाउंट्स जो होते हैं वो NSDL के BO में होते हैं। ये प्रैक्टिकल चीज है विच इज आई एम शेयरिंग। और ब्रोकर के अकाउंट है किसी के, और अदरवाइज जनरल पब्लिक के, तो आप CDSL में भी जा सकते हैं। और दोनों के हैं तो आपको दोनों जगह डिपॉजिटरी में एप्लीकेशन डालना पड़ेगा। दिस इज द प्रैक्टिकल थिंग। सो select the DP. You can go for the CDSL, NSDL, depend upon your shareholders list. Who is there? ऐसा नहीं हो कि आपने CDSL में ले लिया, पता चला वो तो बैंक है, वो तो है ही नहीं इधर, NSDL में भी जाना है। तो वो थोड़ा सा टेक केयर करके इजीली हम लोग प्रोसेस को फॉलो कर सकते हैं। CDSL आपने DP सेलेक्ट किया, उसके बाद में अपॉइंट रजिस्ट्रार एंड शेयर ट्रांसफर एजेंट। डिपॉजिटरी सेलेक्ट कर लिया, वी आर द इशुअर, वी आर द कंपनी, एप्लीकेबल कंपनी। डायरेक्टली डिपॉजिटरी हमको डील नहीं करेगा, दे विल नॉट एंटरटेन अस। आपको कोई ना कोई RTA या STA जो भी है सेलेक्ट करना।
आरटीए और एसटीए की सारी लिस्ट सेबी पे, सीडीएसएल की साइट पे, एनएसडीएल पे अवेलेबल है। प्रैक्टिकली तो जिससे प्रैक्टिकल कर रहा है कोई बंदा, उससे अपन बात करें तो बहुत अच्छे से चीजें समझ में आती है, बिकॉज हर आरटीए की सर्विसेज और उनका अपने साथ प्रैक्टिकल डीलिंग, उसके हिसाब से हम लोग चीजें तय करते हैं। तो सेलेक्ट एन आरटीए, वो आरटीए आपने सेलेक्ट किया, डीपी सेलेक्ट हो गया। नाउ नेक्स्ट इज step 4 is enter into a tripartite agreement with the depository and RTA. किसी की भी सर्विसेज लेनी है, लॉन्ग टर्म है, अभी तो हो गया तो लाइफ लॉन्ग का काम है, एग्रीमेंट तो चाहिए, सर्विसेज क्या देगा क्या लेगा मेरे से, एवरीथिंग विल बी डिफाइंड देयर। कौन से सिचुएशन में क्या क्या सर्विसेज, मेरा ऑफर आ रहा है, मेरा बोनस आ रहा है, व्हाट काइंड ऑफ सर्विसेज यू आर गोइंग टू गिव मी, व्हाट विल बी द चार्जेस ऑफ योर्स, मैनी थिंग्स। एज ए सिंपल किसी भी सर्विसेज के लिए जब हम जाते हैं तो एग्रीमेंट बनाते हैं, इसमें ट्राई पार्टी एग्रीमेंट बनेगा, इशुअर, आरटीए और डिपॉजिटरी। दिस इज द स्टेप। एक्चुअली होता क्या है, प्रैक्टिकली आपको बताती हूँ, जब हम करने के लिए जाते हैं हम सिर्फ आरटीए सेलेक्ट करते हैं सबसे पहले, वो भी हमारी पहचान का अच्छे से बात करके, भाई मेरा इतना ही कैपिटल है, क्या फीस लेगा, सिंपल है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है ना, वी हैव टू सी मैनी थिंग्स। मेरा आगे कुछ आने वाला नहीं है, क्या करना है, आगे कभी आ गया तो क्या करना है, बाकी एज पर रूल जाएंगे तो वहां पे सब चार्ट बना हुआ है, इतनी कैपिटल है तो ये फीस दे दो, इतना है तो ये दे दो, बट इट्स योर आपस का। आप लोगों का काम बहुत अच्छा होने वाला है, आप सब आरटीए से 1 2 4 से अच्छे से डील करो, सब प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज का जिसका पूरा काम आए उसके साथ डायरेक्ट बात कराओ कि भाई ये मेरी रेट्स हैं, इसके हिसाब से मैं पूरा काम, ये तो ये अभी चीज ज्यादा प्रैक्टिकली हो रही है कि ये मार्केट में आप जाएंगे तो रेट लिखी हुई है, बट आप क्या बात करते हैं, आप क्या सर्विसेज लेते हैं, उसके हिसाब से आप किसी भी आरटीए को, और उसका सबसे बड़ी चीज है कि ठीक है बहुत सारी चीज, लेकिन टाइम पे सर्विसेज आपको मिलेगी क्या, टाइम पे सर्विसेज। जब मुझे बैंक पोस्ट चाहिए, मैंने इश्यू किया सब, जब तक नहीं किया ठीक है, कर दिया, कुछ ट्रांसफर के लिए आ गया, तो मुझे बैंक पोस्ट चाहिए कि इफेक्ट आया क्या डीपी में, तो वो मुझे जनरली फ्राइडे को आती है, बैंक पोस्ट आती है। जब एज इट इज अभी क्या होगा कि ट्राई पार्टी एग्रीमेंट हम कर रहे हैं, जैसे ही आपने आरटीए सेलेक्ट किया, यू विल मेक ए कॉल, बात करेंगे, जो भी आपने बात करनी है 2 3 से आप डिटेल निकाल के बात करिए, देन वो बोलेगा कि एप्लीकेशन मुझे चाहिए, एज इट इज आपको कुछ भी बताने वाला नहीं है, वो आपसे रिटर्न मांग लेगा कि मुझे आप अपॉइंट करने वाले हो, इंटेंट हो ऐसा, मुझे एप्लीकेशन। आपने उसको मेल किया, मेल जब उसके पास में कंफर्म लेटर पहुंचता है, देन दे विल प्रोसीड फर्दर, उसमें वो फिर आपको एक लिंक भेजते हैं, वो लिंक जैसे उसमें एक फॉर्म रहता है, वो फॉर्म आप फिलअप करते हैं, बेसिक इंफॉर्मेशन कंपनी की, कैपिटल ये टाइप की कैपिटल से और सारी चीजें, वो कैपिटल उसके बाद में वो उसमें अपना, इसमें अब डीएससी बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है क्योंकि ऑनलाइन प्रोसीजर आ गया है, पहले फिजिकल होता था तो पेपर इधर जा रहा है फिर आ रहा है फिर जा रहा है फिर इधर से जा रहा है, आपको हर चीज पे अपना डीएससी यूज करना है। आपके पास में एग्रीमेंट पे लगाने के लिए ऑथराइज पर्सन का डीएससी होना चाहिए, और एक डीएससी होना चाहिए जो भी आपका विटनेस रहेगा, विटनेस इज इंपॉर्टेंट, विच इज समथिंग डिफरेंट, कि अब हमें विटनेस का भी एज ए प्राइवेट कंपनी आज तक जरूरत नहीं थी, बट विटनेस के लिए भी अब आपको एक डीएससी उस पर यूज करना है, तो वो लेना है। तो ये डीएससी की है, कुछ ऐसी है प्रोसीजर जो हमको बैंक में सारी बड़ी करनी है कि तुरंत करना है, 30 सितंबर आ गई, लास्ट डे करेंगे कोई बात नहीं, पर ये तैयारी तो करके रखते हैं क्योंकि वो कुछ ना कुछ करते करते लास्ट डे आ ही जाता है, सब चीजों को हम कंपाइल करते हैं, तो वो डीएससी वगैरह सब लगा के आप वापस उसको भेजेंगे, डीपी उसको आरटीए चेक करेगा, आरटीए अपना साइन डालेगा, बहुत सारे उसमें डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट आती है, वो भी हम अभी बात करेंगे, वो सारे डॉक्यूमेंट्स आप उसमें अटैच करके जब उसको देंगे तो फिर वो उसको डीपी में भेजेगा, पहले खुद चेक करेगा, फिर डिपॉजिटरी में भेजेगा, डिपॉजिटरी सब चीज ठीक है तो आपको इमीडिएटली
आईजीन नंबर इश्यू कर देगी। आपकी जितनी भी एक ही एग्रीमेंट पे जितनी भी सिक्योरिटीज हैं, आप उसके लिए आईजीन अप्लाई कर सकते हैं। वो अलग अलग कैपिटल का डिटेल आपको उस फॉर्म के साथ जो आप ट्राई पार्टी एग्रीमेंट लगा रहे हैं उसके साथ देना होगा, एंड यू कैन गो फॉर दैट आईजीन नंबर। आईजीन आपको अलॉट हो गया। नेक्स्ट प्रोसीजर तो केवल डीमेटलाइजेशन का ही है। इमीडिएटली इन्फॉर्म टू द शेयर होल्डर्स and request them, you can inform them by the mail and always request, और उसमें periodically मेल भेजने का भी है कि करवा लो। वो प्रोसीजर हो गया। सबसे पहले इमीडिएटली आपको अपनी डायरेक्टर्स का, केएमपीस का वो करवाना है। अपनी तरफ से खुद को पूरा पक्का कर लेना है कि मैंने तो पूरा लॉ कंप्लाई कर लिया। नाउ इट्स इन द others which is not in my purview, but I posted them. I informed that it is this dematerialization facility is available for your company. This is the main thing which rule 19B1 sub rule B says कि facilitate them. तो वो हमने यहाँ पे कंप्लाई कर ली। जब आप प्रोसीजर अडॉप्ट कर रहे हैं तो आपका सब चीज होती जा रही है। ये कर लिया, और साथ में आपने इंश्योर करना है वही जो मैंने बोला कि मेरे केएमपीज हो गए हैं, अब क्या मेरे दूसरे हो रहे हैं। यदि जब दूसरे लोग डीमेटेरियलाइजेशन के लिए जाएंगे, पहले तो क्या हो रहा था ना, डायरेक्टली लिस्टेड कंपनीज में, और उसमें तो डायरेक्टली आ रहा था। प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज में एक बहुत बड़ा चंक है कि हमारा नंबर ऑफ मेंबर्स ज्यादा नहीं होना चाहिए। दिस इज द बेसिक क्राइटेरिया। जो हमारी लिमिट है उससे बाहर नहीं चला जाए, इधर उधर ट्रांसफर ना हो जाए, या किसी ने कुछ सीक्वेंस में डाल दिया। तो सबसे पहले जब भी वो डीमेटेरियलाइजेशन के लिए आता है तो वो आता है कंपनी के पास, वहां से सीधा आ जाता है। डॉक्यूमेंट जब डीआरएफ लगा के, आगे प्रोसीजर में है कि डीआरएफ जब लगा के वहां आता है तो आएगा, कंपनी चेक करेगी वैलिड है ना, फेक तो नहीं है, इसी के नाम से है ना, क्या है सब चीज। इफ कंपनी मेक्स इट ओके और कंपनी पेज द फीस to make it dematerialized, shareholder will not pay anything for dematerialization. In this case, company will pay. Company will do the corporate action. Actually, company will initiate the corporate action with the required fees जो आपने पहले अपने एग्रीमेंट में डिसाइड करी है। हर कॉर्पोरेट एक्शन के लिए जनरली 1000 रुपीज। इट्स अपॉन यू कितने आ रहे हैं, कैसे किस एक कॉर्पोरेट एक्शन में डालने हैं कि दो नहीं आ रहा है तो एक भी कराना पड़ेगा। तो वो कॉर्पोरेट एक्शन के साथ में वो वहां पे डीमेटेरियलाइज्ड होने जाएगा। तो इट विल कम टू द कंपनी। वहां पे आपको पूरी उसकी कंप्लायंसेस इंश्योर कर लेनी है कि हाँ ये सही है, या कुछ भी इसमें गलत हमारे पार्ट पे गलत नहीं हो रहा है। जब यदि सारी ही शेयर्स डीमेटेरियलाइज्ड हो गए आपके, तो ऑलवेज इंश्योर कि जितना इशू किया था उतना आया है, कितना बाकी है, प्रॉपरली डीपी में रिकॉर्ड रजिस्टर हो गए हैं, आपने करके भेज दिया, वहां पे हुआ कि नहीं है। इट्स योर ड्यूटी टू जस्ट चेक और टेक कंट्रोल ऑफ एज ए एप्लीकेबल कंपनी कि हाँ सारी चीजें कंप्लाई हुई हैं, जैसा चाहते थे वैसी ही हुई है।
As we discussed the procedure में बहुत सारी जगह पे तो मैंने बताया है। CDS आपने बोर्ड रेजोल्यूशन बना लिया, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में चेंज कर लिया, रिवाइज्ड और चेंज आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ही यहाँ पे चलेगा। ड्यूली सर्टिफाइड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होगा, उसमें पावर्स होंगी तो ही डिपॉजिटरी उसको एक्सेप्ट करेगा। उसके बाद में हमने बोर्ड रेजोल्यूशन बना लिया, बोर्ड रेजोल्यूशन में हमने ऑथोराइज्ड कर दिए, तो लिस्ट ऑफ पर्संस की जो ऑथोराइज पर्संस की लिस्ट है वो जाएगी। ये सब किसके साथ जाएंगी? जो हमारा ट्राई पार्टी एग्रीमेंट बना है उसके साथ में ये सारी चीजें हमको देनी पड़ेंगी। नेक्स्ट है एक रिक्वेस्ट लेटर, जो मैंने आपको बोला कि आरटीए हमको स्टार्टिंग में ही भेज देगा कि हमें डीमेटेरियलाइज करना है, उसका प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट है, उसको उसमें जो बेसिक इंफॉर्मेशन है वही हमने डालनी है, वो सारी हमको करनी है। और एप्लीकेशन फॉर एडमिशन रिक्वेस्ट लेटर जो हमने आरटीए को दिया है वो देना है, और एप्लीकेशन इन प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट जो डिपॉजिटरी प्रोवाइड करता है और आरटीए हमको भेजेगा, क्योंकि हम लोग डायरेक्टली तो डिपॉजिटरी से बात ही नहीं कर रहे हैं। और है डिटेल्स ऑफ सिक्योरिटीज, जितनी भी टाइप की सिक्योरिटीज, प्रेफरेंस है तो प्रेफरेंस का अलग, प्राइवेट प्लेसमेंट में कुछ और गए हैं तो वो, डिबेंचर्स जितने भी हैं वो एक में ही आप अलग अलग डिटेल्स दे देंगे। फिर है इसमें यहाँ पे एक चीज जो आ रही है वो है नेटवर्क सर्टिफिकेट। पेस मिल गया हमको, पहला प्रोसीजर तो पूरा मिल ही रहा है काम करने के लिए, एक डिफरेंट एरिया आ गया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से। दूसरा है नेटवर्क सर्टिफिकेट ओनली बाय द चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, वी आर आल्सो नॉट अलाउड। हमें भी आपके पास ही आना पड़ेगा। हाँ, दैट इज व्हाट। तो वो एक Part of the compliance network certificate. yes. Sir, it is on which date? जब भी आप जाएंगे, डेट जिस दिन आप ये अप्लाई करेंगे, ट्राई पार्टी एग्रीमेंट आप साइन करेंगे, डेट आप वो डालेंगे, बट इट इज बेस्ड ऑन द योर 31st March 2023 financials, because everything we are talking on that point. ठीक है? So नेटवर्क सर्टिफिकेट मिला, पेस मिला हमें। मेमोरेंडम आर्टिकल बात किया मैंने, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन जनरली एक ही रहता है हर कंपनी का, लेकिन कई बार नाम वगैरह चेंज हो जाते हैं। आपका कोई भी चेंज हुआ है तो वो रिवाइज्ड वाला या अपडेटेड वन वाला हमने देना है। कई बार वो सीक्वेंस में भी मांगते हैं, क्योंकि पुरानी भी शीट्स मांगते हैं। वो क्या होता है कि उस टाइम यदि हमने पहले वाले नाम से शेयर सर्टिफिकेट इशू कर चुके हैं और वो डीमेट में आएंगे, तो वहां पे एक सीक्वेंस उनको, आपने एक बार दो बार कितनी बार चेंज किया, सारे लगेंगे उनको। तो कई बार खुद कंपनी भी किधर है क्या है ढूंढना है, तो नहीं मिलेगा तो फिर प्रोफेशनल के पास में आना है, लाके दो आरओसी में किधर है। तो काम हर स्टेप पे डिफरेंट नेचर का वर्क, इसमें प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से आप डील कर रहे हैं तो ऑफ कोर्स देयर इज अ चांसेस ऑफ लॉट ऑफ वर्क। देन द ऑडिटेड बैलेंस शीट और एनुअल रिपोर्ट फॉर द लास्ट फाइनेंशियल ईयर्स, जो हम ऑलरेडी बात कर रहे हैं 31st March तक का वो मांग ही रहे हैं हमसे। जीएसटी सर्टिफिकेट इफ एप्लीकेबल, और पेज 3 31st March 2023 की बैलेंस शीट और 27th October 2023 when these rules were notified, उसके बीच में आपने कभी कोई कैपिटल इश्यू कर दी है या कैपिटल से रिलेटेड बोनस कुछ भी एक्टिविटी आपने करी है, तो आपने जरूर आरओसी में जो कंप्लायंसेस करी है पूरी, वो आपको यहाँ पे भी उनको देनी पड़ेगी कि हाउ इट इज माय कैपिटल, क्योंकि वो जब बैलेंस शीट जाएगी उसमें कुछ और है, आप फॉर्म में कुछ और भर रहे हैं, तो यू हैव टू जस्ट क्लैरिफाई इट बाय सबमिटिंग द पेज 3। Other than that, there is a variation or reduction. उसमें during that period, last से अब तक जब ये रूल एप्लीकेबल हुआ
या आपने जब प्रोसीजर चालू किया, आप जा रहे हैं, उसमें कोई भी चेंज हुए हैं, रिडक्शन हुआ है आपकी कैपिटल में, या आपने एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज के राइट्स में वेरिएशन किया है, तो उसके लिए आपको SH7 ड्यूली सर्टिफाइड ऑल द डॉक्यूमेंट्स। और एक लास्ट है अंडरटेकिंग कम इंडिमिनिटी, दैट विल बी ऑन द लेटर ऑफ द कंपनी विद द प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट वहां देते हैं। इसमें जो भी दिया आपने सच दिया है, सच गलत नहीं दिया है, गलत हो गया तो नुकसान हो गया तो आपकी जिम्मेदारी। बहुत सिंपल, जो सब जगह हम करते हैं भाई। Indemnity bought with signed by the director or the ऐसा कुछ नहीं है सर, आपने जिन लोगों को ऑथोराइज कर दिया ना, दे कैन डू एवरीथिंग। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का तो आपने उनको ऑथोराइज किया तो वो कर देंगे, अदरवाइज आपने ऑथोराइज किया है ये प्रोसीजर करने के लिए जिन भी लोगों को देख। इसमें पैन कार्ड भी जनरली KYC के लिए पैन कार्ड भी वो लोग मांगते हैं। जब ये डॉक्यूमेंट सारे इकट्ठे करके जाएंगे, दे विल वेरीफाई, कहीं पे कोई भी चीज का डाउट है तो कभी पैन टेन कुछ भी दीज आर द सम की पॉइंट्स आई इनकॉर्पोरेटेड। इसके अलावा जब चेकिंग के लिए जाएंगे, उनका जो भी डिपॉजिटरी की रिक्वायरमेंट होगी, वी हैव टू लुक आफ्टर इट। अब तक हमने एज ए इशूअर बात करी, कंपनी क्या क्या करना है, कैसे करना है। एज ए शेयर होल्डर, हो सकता है हमारे पास शेयर हो किसी प्राइवेट कंपनी के, तो मेरे ख्याल से आज की तारीख में सब लोगों ने अपने डीमैट अकाउंट खुलवा ही रखे हैं। बीओ के पास सबके पास अपने बीओ अकाउंट है, तो इसमें ज्यादा तुम्हें क्या बोल पाऊं, सबके पास में डीपी है। यदि नहीं है तो एज ए प्रोसीजर हम जस्ट देख सकते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू सेलेक्ट ए डीपी, ओपन योर डीमैट अकाउंट। और ये आपके लिए नहीं है, जिस कंपनी का आप काम ले रहे हैं या कर रहे हैं, उनके डायरेक्टर्स, प्रमोटर्स, KMPs या किसी भी जनरल बंदे के लिए हो सकता है, जो आपको आके पूछेगा ये डीमैट है क्या, ये क्या करना है, देन दिस इज द प्रोसीजर। जब डीमैट के लिए नॉट रिसेंटली, कल ही की बात है, आई वॉज टॉकिंग टू सम बहुत पुराना है कंपनी में उनका, मैंने कहा अभी आप डीमैट एप्लीकेबल हो गया है तो आप करवा लो। नहीं, डीमार्ट किधर है, डीमार्ट तो इधर ही है। मतलब डीमैट और डीमार्ट सेम चल रहे हैं। डीमार्ट मैडम डीमार्ट नहीं है, मेरे को कानों में ऐसा लगा कल मैं डीमार्ट ना बोल दूं, उधर 2 बार डीमार्ट बोल दिया। मतलब जो बहुत पुराने से, जो मतलब वो लिटरली भूल ही गए हैं कि शेयर सर्टिफिकेट कहाँ रखा है, क्या है शेयर सर्टिफिकेट। काम तो चल रहा है, बरसों से चल रहा है काम। प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज इतनी पुरानी हो गई है और उनके जो खुद के ग्रुप है वो इतने बड़े बड़े हो गए हैं, वो प्राइवेट कंपनियां अलग रह गई है। एक मेन कंपनी है, उसके नीचे 20-25 प्राइवेट कंपनियां हैं। अब वो कब बना था शेयर सर्टिफिकेट, कितनी बार बन गया, बना भी था, किधर गया, सो मेनी थिंग्स आर रोमिंग अराउंड। और जो होल्डर है उनके अकाउंट, मतलब क्योंकि प्राइवेट कंपनी थी, उसमें 2-3 बंदे चाहिए, तो उस हिसाब से कभी देखा भी नहीं। और डीमार्ट क्या, डीमैट होता है वो, कई प्रैक्टिकली व्हेन यू गो और डील विद दोस पर्संस, तो ये पूरा प्रोसीजर जो हमने ऑलरेडी कर लिया है अपने लिए, उनके लिए अब हमको करना पड़ेगा। डीमार्ट नहीं जाना है, डीमैट के लिए जाना है, डीपी अकाउंट खोलना है। तो डीपी अकाउंट में हमको थोड़ा भी क्या है कि बहुत प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज का बहुत बड़ा स्कोप है, क्योंकि कभी किसी ने इसको इतना नहीं लिया, सबने इसको
रेगुलेटरी फ्रेम में लेने का वो नहीं किया, काम के लिए सब बहुत है उसमें, बहुत पैसा बिजनेस करना है तो बहुत सारा उसमें है, लेकिन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में ये इसी टाइम आया है कि अब ये जब बाहर की चीजें हमारे ऊपर आने लगी ना, तब कि हाँ शेयर सर्टिफिकेट भी जरूरी है, कहाँ था किधर है, कभी देखा भी नहीं है। तो वो सब चीजें अब धीरे धीरे उसी में ही यहाँ पे जो पुरानी चीजों को निकालने में जो बहुत पुरानी कंपनियां हैं उनमें ही अभी टाइम लग रहा है। बाकी जो रिसेंट वाली है जो प्रोफेशनल मैनेज्ड कंपनियां, उनमें हमको कहीं पे कोई इतना वो नहीं, लेकिन जहाँ पे डीमार्ट को डीमैट में ही नहीं है, वो चीज हमको थोड़ा सा टेक केयर करनी है वहां पे। तो डीपी अकाउंट के लिए वहां बोलना है डीपी सेलेक्ट करिए और अपना अकाउंट खुलवाइए। जब अकाउंट खुल जाएगा तो आपको अपना डीआरएफ सबमिट करना है, शेयर सर्टिफिकेट लगाने हैं, डीएनएफ प्रॉपरली देना है। आप जिसका भी भरेंगे आप जाइए ग्रुप में, सेठ जी को बोलिए सर अब तो करना ही है, अब तो आ गया, करना ही पड़ेगा क्या, नहीं तो But our company don't have the even original specimen signature and shareholders submit the application. So हाँ how they are going to verify? यही तो बात है सर, यही तो काम है यहाँ पे, यही तो सबसे ग्रे एरिया है। इतनी पुरानी कंपनियां हैं, बरसों पुरानी कंपनियां हैं, बरसों पुरानी कंपनियां, Name also does not match. मतलब इतनी कंपनी, और प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों की लाइन है, बड़ी लाइन है। लिस्टेड कंपनियां बहुत थोड़ी सी, पब्लिक लिमिटेड उससे थोड़ी सी ज्यादा, बाकी सारी प्राइवेट लिमिटेड। Shareholder has issued the check of lakh of a rupee, company has issued the equity shares, खत्म हो गई बात। अब ये सब हिस्ट्री पूरा चालू हो गया। ये आपको सब अच्छे से पता है। Even I think they may not be having even physical share certificate, so they have to follow the. सब रिकॉर्ड हो रहा है सर, सब रिकॉर्ड हो रहा है सर। यही प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है, इसको मैं बोलना नहीं चाह रही हूँ, आप समझ रही हो, मुझे पता है कि ये डीमार्ट जाना है कि डीमैट के लिए शेयर सर्टिफिकेट, डीमैट बोलते तो डीमार्ट ही सुनते क्योंकि शेयर सर्टिफिकेट देखा ही नहीं है। Statutory register भी maintain नहीं किए हैं। मतलब Certificate auditor कैसे कर सकते हैं? सर अभी वो तो देखो थोड़ा सा आप ही हो उसमें, फिर आपको याद है। अभी को मालूम है देना पड़ेगा। वो तो आप सब बैठे हैं सामने, तो आप ही बताओ कैसे किया है। तो इतना तो मैं आज की तारीख में ये मान के चलती हूँ कि बैलेंस शीट में जितनी कैपिटल, मैं ये मान के चलती हूँ कि जो बैलेंस शीट किसी भी प्रोफेशनल ने बना दी है, साइन कर दी है, वो ट्रू है। बस मेरा इतना ही काम है, मैं उसको क्वेश्चन नहीं कर सकती, चाहे उसके पीछे क्या है, सर्टिफिकेट है नहीं है, आपने बना दी, मैं ये मानती हूँ कि सर्टिफिकेट है, मैं उसकी उस चीज में बिल्कुल नहीं जाऊंगी। अब वो है नहीं है, बनाना है, वो एक बहुत ही अलग एरिया। इवन आपने बना दी और आपने सबमिट कर दी तो आरओसी में गई, तो आपका भी पॉइंट ऑफ व्यू एकदम क्लियर है कि आपने सब देखा था तब किया है, इससे आगे हम बात भी नहीं करेंगे। बहुत सिंपल सा है जहां तक मैं अपने हिसाब से, क्योंकि आई बिलीव ऑन ऑल द प्रोफेशनल्स कि दे हैव डन देयर परफेक्ट जॉब। ये चीज अब आएगी कि अब जब डीमेटेरियलाइजेशन के लिए जाना है तब भी वो आपको ही, जैसे आपने खुद ने बोल दिया तो आपको ही पकड़ने वाले हैं कि शेयर सर्टिफिकेट तुमने लिखा था तो किधर है। तो चीज आपको खुद संभालनी पड़ेगी कि अब करना क्या है उस चीज का। तो डीआरएफ की वेरिफिकेशन के लिए हम जाएंगे। डीपी, जहां तक हम बीओ अकाउंट की बात कर रहे थे, डीपी का जॉइंट, इसमें सिंगल अकाउंट हो सकता है, जॉइंट होल्डर्स हैं तो जॉइंट अकाउंट, शेयर सर्टिफिकेट पे क्या लिखा हुआ है उसी टाइप का अकाउंट हर हाल में चाहिए। ऊपर नीचे हो सकता है नाम, लेकिन दोनों का होना चाहिए। किसी दूसरे के साथ में आपका है और आपने उस नाम से डीपी अकाउंट नहीं खोला, बीओ अकाउंट नहीं खोला है आपका डीपी अकाउंट, तो फिर आप नहीं करा सकते। जो नाम दोनों नाम सर्टिफिकेट पे लिखे हैं वो वैसे ही किसी भी डी सर्टिफिकेट की डीमेटेरियलाइजेशन के लिए मस्ट है, तभी वो डीमेटेरियलाइजेशन एक्सेप्ट करेगा आपका। जो नाम फर्स्ट होता है उसी के नाम से जाता है शेयर। हाँ एंड ऑफ द शेयर हाँ बी इज द सेम इज टू द सर्टिफिकेट। हाँ। इट्स बिफोर हाँ शेयर सर्टिफिकेट जो नाम है ना उसी के साथ डीमेट
अकाउंट में हाँ हाँ, थोड़ा भी चेंज होगा तो एक्सेप्ट नहीं करते। ऊपर नीचे हो सकता है, किसी दूसरे के साथ में है तो नहीं लेगा। नेम में भी नेम बदल गया, accept नहीं करते। नेम, अच्छा नेम में एरर हो तो भी एक्सेप्ट नहीं नहीं, करते, नहीं करते। रिजेक्ट नहीं करते नहीं, नेम तो डिफरेंट हो सकता है, मतलब नेम डिफरेंट है तो आपको दूसरा अकाउंट खोलना ही पड़ेगा, दैट इज क्लियर। अच्छा स्पेलिंग एरर हो तो भी हाँ reject हाँ, करते। वो तो बराबर है, वो नहीं कर लेंगे। इवन वो जब बनकर के पूरा कंपनी के पास में जाएगा तो कंपनी खुद अपने फिजिकल रिकॉर्ड से चेक करेगी कि साइन बराबर है कि नहीं है क्या। अब वो कंपनी भी कैसे चेक करेगी, वो तो अब आपकी बैलेंस शीट में ही चेक करेगी, आपने लिखा था तो अब ये तो सही होगा, है ना, वैसा वाला मैटर है। तो नहीं, अपना में सिग्नेचर चेंज हो गया, ऐसा ही कोई फॉर्म आता है तो अकॉर्डिंगली दैट फॉर्म विल बी सबमिटेड एंड देन यू हैव टू प्रैक्टिकली ये नोबडी रिकॉग्नाइजेस कि मैंने 20 साल पहले कैसे सिग्नेचर मारा। अरे फॉरगेट दैट कंपनी उनका signature change हो रहा है। हाँ? प्राइवेट कंपनी में किसी का रिकॉर्ड ही नहीं है सिग्नेचर। हाँ तो करेक्ट है, तो वेरिफिकेशन चेंज ऑफ सिग्नेचर का ये फॉर्म आता है कि माय सिग्नेचर इज चेंज नाउ। सेम सेम बैंक वाला प्रोसीजर लगेगा, जो चीज सारी इवन एफिडेविट एफिडेविट ज्यादातर मांगने पर वो बहुत कम हो रहा है जनरली। वो एफिडेविट के लिए भी 100 रुपया भी, कितने लोग रिकॉर्ड, पुराने शेयर सब में प्रॉब्लम आ रही है। हाँ ये पुराने शेयर होल्डर है, बिल्कुल। इसलिए सब में प्रॉब्लम। प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज का ये जो इस टाइप का काम है ना, ये मेन काम क्या हो गया है ना, जहां तक मैं इसको समझ पा रही हूँ, लाइजनिंग वर्क बहुत हो गया है इसमें। लेबरिंग नहीं, हम तो लेबर ही करते हैं सर, अभी क्या करें, पैसा जिधर से मिलेगा हम तो लेबर कर लेंगे, लेबर को हम लोग लाइजनिंग बोलते हैं। अब प्रोफेशनल सर्विसेज दे रहे तो लाइजनिंग में तो बनता है, इतना तो करेंगे। काम दे दो, आई थिंक द चेंज ऑफ सिग्नेचर वो फॉर्म नोटराइज करना, नॉट एक प्रॉपर अच्छा स्टैम्प चाहिए। एक्चुअली बैंक का ये रहेगा, उसमें उसकी लैंग्वेज, बैंक का तो डिफरेंट ही लैंग्वेज रहती है कि ये ट्रांसफर एजेंट आरटीए वाले, हाँ So these are notarized now. So once you do it, हाँ ये पहले का कुछ क्योंकि मैंने एफिडेविट वाले तक तो किया है, क्योंकि हम लोग डायरेक्ट एफिडेविट दे देते हैं कि ये मुझे अभी मतलब क्या हो, मतलब ये एक सिचुएशन है। अभी कैसा भी हो गया है कि जिसके नाम में सर्टिफिकेट, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स इतनी ज्यादा हैं प्राइवेट लिमिटेड होने की कि जिसके नाम में सर्टिफिकेट था उसकी तो डेथ भी हो गई, उसका सर्टिफिकेट का क्या करना है वो बताओ। अभी वो कभी का मतलब प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स जो है इतनी, जो प्राइवेट कंपनीज में डील कर रहे हैं और जिनकी कंपनियां बहुत पुरानी है, आउट ऑफ द मतलब आप समझ लो 2013 कंपनीज एक्ट आया है, तब से चीजें बहुत सुधर गई है, पर उसके पहले की आपकी कंपनीज हैं तो फिर आपको मतलब वो लाइजनिंग वर्क, लेबर नहीं, लाइजनिंग वर्क अच्छे से करना पड़ेगा। किस किस को कंपनी में ऊपर से नीचे तक पहले कौन आदमी था, किसके पास में है डॉक्यूमेंट, इनकी डेथ हुई तो बाकी के डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूशन में आए होंगे ना, वो एक पेपर अब आपको फिर से ढूंढने हैं इस चीज को एग्जीक्यूट करने के लिए। तो वो एग्जीक्यूशन प्रोसेस, लाइजनिंग प्रोसेस, उसके लिए आप अच्छे से किसी भी कंपनी के साथ में डील कर सकते हैं। सिंपल है हमारा, ये सब हो गया और कंफर्मेशन हो गई। डॉक्यूमेंटेशन जैसे हमने कंपनी के लिए बात करी, करीब 15-16 डॉक्यूमेंट हम वहां पे दे रहे थे, विच इज द मिनिमम वेयर रिक्वायरमेंट फॉर द ट्राइपार्टी एग्रीमेंट। यहाँ पे केवल आपको केवाईसी करवाना है, केवाईसी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। आपको सबको पता है हर 6 महीने में केवाईसी आ जाता है हमारा, हर 6 मंथ में आ जाता है। नेट बैंकिंग में ही आ जाता है। हाँ वही, दैट इज द सेम प्रोसीजर ओवर हियर आल्सो, यस सेम प्रोसीजर। मतलब आपने एक और फील्ड पकड़ ली, थोड़ा सा कुछ भी चेंज हुआ, एड्रेस चेंज हो गया, कुछ भी चेंज हो गया, केवाईसी कराना ही है। क्योंकि डीपी में मतलब आपका जो अकाउंट है सेम, इट विल वर्क लाइक सेम एज योर बैंक अकाउंट। केवाईसी का काम एवरी 6 मंथली या जब भी आपके मेन डॉक्यूमेंट्स में चेंज हो गया, पैन, आधार, केवाईसी आपको कराना ही है। दूसरी चीज जो अभी हम बहुत देर से बात करें, ओरिजिनल शेयर सर्टिफिकेट मांग रहा है। ओरिजिनल कितने लोग ओरिजिनल दे पाएंगे? 5%. कितने लोग दे पाएंगे ना? क्वेश्चन सोचने की बात है। नहीं दे पाएंगे तो क्या करेंगे?
बनाया ही नहीं। Apply for the same. बनाया ही नहीं होगा तो डुप्लीकेट प्रोसेस है। हो गया काम हो गया ना फिर से काम का है आप देंगे फेस कोई देता नहीं है मैडम। क्लाइंट और क्लाइंट से पूरे साल का है उसका आपका सब आ गया। हाँ तो वो आपको बोलेंगे ना मैंने पहले आपसे ही कराया था उस टाइम में आपने सर्टिफिकेट क्यों नहीं देगा और ये तो अनदर ऑडिटर हुआ था। आपने तो आपको दे दिया था, आपने कहा आपको क्या हाँ, अब ये देखिए ऐसे आपके क्वेश्चन का जवाब इमीडिएट है तो ये जो ओरिजिनल सर्टिफिकेट वर्ड है ना ये भी थोड़ा संभाल के लेने वाला है जनरली इट्स नॉट एट ऑल ट्रस्टेबल बहुत 2013 के पहले का मैं आपको बता रही हूँ पहली बात तो चीजों को समझ में ही नहीं आ रही है जो प्राइवेट कंपनी के जो बहुत इंटीरियर समझो अहमदाबाद और वो साइड की कंपनियां हैं उनको तो बहुत तकलीफ हो रही है बहुत पुरानी है वो कंपनियां कईयों ने तो खोल के डाली कभी टर्नओवर बढ़ गया कभी कैपिटल बढ़ गई उसके बाद बहुत टाइम से नहीं हो रहा है फिर से चालू कर दिया फिर कम हो गया ज्यादा हो गया मतलब प्राइवेट कंपनियां मेन ग्रे एरिया हो गया है तो उसमें इन सब चीजों को उनके सर्टिफिकेट बनाना उन लोगों को समझाना एज ए प्रोफेशनल हम लोग फटाफट हाँ मगर जब वहां सामने बैठते हैं तो इश्यू होते हैं बहुत सारी चीजों में इश्यू होते हैं वर्डिंग्स में हम लोग बात कर रहे हैं केवाईसी करा लेंगे पैन क्यों चाहिए पैन ही नहीं है आधार क्यों चाहिए आधार भी नहीं है अब तक क्योंकि कभी मांगा ही नहीं किसी ने वहां तो सब चलता है ना उधर तो अब नहीं चलेगा तो कैसे करना है तो भाई सीए है ना आपका उसको बोलो वो करा के देगा बहुत सिंपल है हम तो यहाँ से कुछ नहीं कर सकते आपके जो लोकल सीए रहेंगे या जो फिर ध्यान आता है कि हाँ कंपनी में जाते हैं ऑडिटर कौन है सब चीज फिर वापस से मतलब चीजें चालू हो रही हैं जो कंपनियां एक्टिव नहीं है फिर उनको ध्यान आएगा इतना प्रोसीजर हो गया बंद ही करा देते हैं तो बंद कराने का काम ले लो फिर मतलब अपॉर्चुनिटी इतना इतनी फॉर्मेलिटी सब डेली पेज से हर 6 महीने में पेज 6 भी देना पड़ेगा ये भी प्रॉब्लम लेने वाले हो ये हमारे चैलेंजेस और इश्यूज में यही आ रहा है केवाईसी इटसेल्फ अ बिग जॉब जब इतने सारे लोगों का केवाईसी होगा तो क्या आपका सिस्टम ले रहा है उस चीज को क्या वो टाइमली हो रहा है केवाईसी देश का नहीं होता वो अकाउंट नहीं ओपन होता है उसका। बिल्कुल सही बोल रहे हो आप इसीलिए जब मैंने प्रोसीजर बताया था कि विटनेस का भी डीएससी लगेगा डीएससी इटसेल्फ में बड़ा काम हो गया है ये सब दुनिया की स्मॉल कंपनी के डेफिनेशन यदि वो आ रही है तो निकल जाएगी ठीक है ना हाँ यदि वो उसमें बैठ लेकिन अभी यहाँ पे हम उसकी बात नहीं कर रहे कि समझो दूसरा उस बात करें हम शेयर होल्डर के पर्सपेक्टिव से कि केवाईसी कराना है शेयर सर्टिफिकेट जिसके लग रहे हैं तो तुम शेयर सर्टिफिकेट मुझे दोगे तब मैं डिमेट कराऊंगी ना तो उनकी जो अपनी प्रैक्टिकल चीजें हैं जो अभी नहीं है उन चीज वो थोड़ी अवेयरनेस एज ए प्रोफेशनल प्राइवेट कंपनीज में हमको लानी पड़ेगी बढ़ानी पड़ेगी तब हम कुछ काम कर पाएंगे इस चीज को करने मेरा खुद का डीमेट है मैं महीने से ट्राई कर रहा हूँ केवाईसी के लिए सब कुछ करने के बाद में टेक्निकल है प्लीज ट्राई हाँ बिल्कुल बिल्कुल क्या नहीं हम खुद हमें मैसेज आते हैं केवाईसी कराइए ठीक है कराने गए सब पेपर दे दिए 3 महीने बाद फिर आ गया महीने भर बाद फिर आ गया केवाईसी डॉक्यूमेंट तो देख अब बंदा वो नहीं कर रहा है तो मैं क्या करूं अब भाई जब तक केवाईसी नहीं होगा मेरा तो डीमैट अकाउंट काम ही नहीं करेगा भाई आगे के वो ये जो सारी लॉजिस्टिक्स प्रॉब्लम्स आने वाली इतने नंबर ऑफ पर्सन जब जाएंगे तो क्या हमारी मशीनरी क्या हमारी वो सब चीजें अपडेटेड हो गई है कि वो इन चीजों को ले ले ये सब जो है ना बोलने के लिए रूल्स भी पड़े हैं प्रोसीजर भी पता है प्रैक्टिकल में क्या ये उतनी स्मूथली हो पा रही जितना स्मूथली हम प्रोसीजर बोल रहे हैं ये तो आने तो अभी तो आया 18 महीने थोड़ा ज्यादा ठीक थी ज्यादा दे दिया ना 8 महीने तो पहले निकल गए जब वो 8 महीने पहले निकल गए पैन आधार वाली चीज हो गई हाँ पैन आधार वाली चीज होने वाली है they will extend the time
लास्ट मोमेंट, They will have to, वो तो 29 सितंबर 2024 को रात को 11 क्योंकि बॉम्बे की सिचुएशन फिर भी अच्छी है। बॉम्बे में कंपनियां और प्रोफेशनल्स 2013 के बाद में काम बहुत अच्छा हो रहा है, लेकिन तो भी थोड़ा सा बाहर जाएंगे ना, महाराष्ट्र के छोटे इंटीरियर, वहां पे थोड़ी अभी भी चीजें, जहाँ फैक्ट्री नहीं ऑफिस है, तो फैक्ट्री का ही सामान पड़ा हुआ है, ऑफिस का सामान किधर, वहां पे अब चीजें। लेकिन जो टॉप लेवल वाले जो है उनको तो प्रॉब्लम नहीं होगा, वो तो सारे धीरे 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 करके आ जाए। बेसिकली तो उन्हीं को उनको कैप्चर करना है ना, गवर्नमेंट उनको यस 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 बाकी तो छोटे में उनको इंटरेस्ट नहीं है। यस ना, पर जैसे अभी क्या हो गया ना, जैसे हम बोल रहे हैं कि कंपनी के केएमपीस, डायरेक्टर्स, वो सब आ प्रमोटर्स जाए। चाहिए, उनको भी आपको कैसे लाओगे, सर्टिफिकेट बने नहीं है, ओरिजिनल चाहिए, केवाईसी तो चलो मैं मान के चलती हूँ कि एक बार तो उनका अकाउंट खुला हुआ है तो सब हुआ वही होगा, आपको खाली अकाउंट, बट फिर वापस से केवाईसी अपडेट कराना, सर्टिफिकेट वहां लगाना, वो वहां से आरटी के पास में जाएंगे, डीपी से आरटीए को भेजेंगे, आरटी चेक करके वापस आपके पास भेजेगा, है या नहीं है, चेक करना है ओरिजिनलिटी, क्योंकि किसने कब क्या बनाया था नहीं पता। ठीक है ना, प्रैक्टिकल बात है ना ये तो, किसने कब क्या बनाया पता नहीं। डिस्टिंक्टिव नंबर भी कई बार रिपीटिव आ रहे हैं, छोटी सी कंपनी है, पर एक उस टाइम में इतनी अवेयरनेस नहीं थी, एक ऑफिसर आया, उसने कंपनी में काम करा था, उसने बना दिया, दूसरे को पता नहीं है कि वो वाला बन चुका है, मिला नहीं, उसने एक और बना दिया। तो वो जेन्युइनिटी, क्योंकि अब तो सब फिक्स होने वाला है, कैपिटल पेड अप और डिजिटलाइज सब फिक्स हो जाएंगे, तो थोड़ा सा कॉशियसली चीजों को करना है। ठीक है, रूल 9 भी से नथिंग, मुझे तो कुछ नहीं पता है, क्योंकि उसमें तो क्या होने वाला है ना, डेली मतलब अभी प्रैक्टिकली जो हम बातें कर रहे हैं ना, उसके ऊपर कुछ ना कुछ क्लैरिफिकेशन हर बार आने ही वाले हैं। अभी तक जब से रूल बना है 27 अक्टूबर 2023 के बाद में, और 30 सितंबर 2024 गोइंग टू बी द लास्ट डेट, तब तक इतने सारे इश्यूज इकट्ठे हो जाएंगे, वो भी सब लास्ट मोमेंट में प्रेजेंटेशन होने वाले हैं, अच्छे खासे प्रेजेंटेशन होने वाले हैं, आइदर एक्सटेंड द डेट, तो वो हो सकता है प्रैक्टिकली, जो हमारी इंटरमीडिएटरीज आ रही है उनके प्रॉब्लम्स आएंगे, ये नहीं आया वो नहीं आया, तो बहुत सारी चीजें होंगी। तो रूल 9 भी शांत है, क्योंकि पता है आगे क्या है, तो जब कोई किसी भी रूल में या किसी में कुछ नहीं होता है, तो हमारा कंपनीज एक्ट बोलता है मैं तो 450 में कंसीडर करूंगी, वहां पे जो प्रोविजंस हैं वो सारे आप पे लागू होंगे, एंड दैट प्रोविजंस Section 450 says company and every officer of the company who is in default, यदि आपने एक भी रूल का, रूल 9B सब क्लॉज 1 to 6 एंड रूल 9A सब क्लॉज 4 to 10, ये आपको ध्यान में रखने हैं। प्रैक्टिकल प्रोसीजर्स हमने ऑलरेडी देख लिया, यदि आपने कहीं पे भी कुछ भी फॉलो करने से चूक गए हैं, 18 मंथ्स में आपने कंप्लाई नहीं किया है, तो एवरी पब्लिक द कंपनी एंड एवरी ऑफिसर ऑफ दैट कंपनी, और बिकॉज हम ऑथोराइज पर्सन की लिस्ट बना रहे हैं, तो पर्सन इन डिफॉल्ट शेल बी पनिशेबल अ फाइन दैट मे एक्सटेंड टू ₹10,000, मतलब होगा, और उसके बाद में कंटिन्यू रहता है
30 सितंबर हो गया हमारा। उसके बाद फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 10,000, फर्दर इंस्टॉलमेंट और 1,000, ठीक है। और उसके बाद में मैक्सिमम जा सकता है आपका 2,50,000। So I think 2,50,000 is cheaper than the deposit. नहीं, वो तो देखो सर, डिफॉल्ट तो डिफॉल्ट है, हाँ, डिफॉल्ट तो डिफॉल्ट है, चीप तो नहीं बोल सकते। डिफॉल्ट तो डिफॉल्ट है, वो अपने आप में एक बड़ी चीज हो जाती है किसी भी कंपनी के लिए। तो वो तो मैं परस्यू नहीं करूंगी, क्योंकि देखिए क्या होगा ना, जब रूल आ गया मतलब आगे पीछे आपको कंप्लाई तो करना ही है, वो तो आप उस बाउंड्री से तो निकल नहीं पाएंगे। तो जब कंप्लाई करना है तो फिर लेट इट बी, थोड़ा सा तकलीफ में ही करेंगे, it is a लेकिन good कर thing. लेंगे, It is a good thing. बजाय हाँ बजाय इसमें जाने के। Any other person with कौन टिकट पर? हाँ Such other person या any other person with कौन से नहीं सर, क्योंकि हमने रेजोल्यूशन पास किया है एंड वी विल ऑथराइज द पर्सन, तो दोज पर्संस टू whom यू आर मेकिंग कंपनी मेकिंग रिस्पॉन्सिबल, उस तरीके से। या आपने बाद में कुछ भी किया है कि भाई ये नहीं है तो ये, तो जो ऑथराइज्ड पर्संस जो उस काम को करने के लिए थे और जिन्होंने डिफॉल्ट कर दिया है, उस ढंग से लॉ चलता है। प्रमोटर तो कभी अपने ऊपर, ये डायरेक्टर तो अपने ऊपर लेगा ही नहीं ना, वो तो ऑथराइज कर दिया है, करो तुम, कल को कुछ भी हुआ इसकी और रिस्पॉन्सिबिलिटी। कंपनी बड़ी किस्म के एक्स्ट्रा को कोई काम दे दिया है, उन्होंने नहीं किया तो दिस आल्सो इज वो आपने क्या लेटर क्या साइन किया है कंपनी के साथ में, उसके ऊपर है। अभी ये तो सारे असाइनमेंट जाने वाले हैं, आपने असाइनमेंट साइन करके ले लिया है, मैं इतने दिन में करके दूंगा, तो इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। वो आपने क्या किया है वैसा वाला मैटर है हर चीज में। कुछ निकाल दे रहे हैं, ये मीडिया को नहीं बोलते। फिर में राइटिंग ले लेगा। राइटिंग, और राइटिंग में वो भी यूज करेंगे या फिर आप भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। Implications, ठीक है। Yes. More and more companies, this is what the idea of the lawyer regulator. 90 post economic liberalization in 91, SEBI came into the fore, action 1992, regulating the market as he want or corporate. सेम सिचुएशन के 96 डिपॉजिटरी एक्ट आया, 92 में जब सेबी आया उसी टाइम डिमेटलाइजेशन के कॉन्सेप्ट उसने लेके आया था, और उसी में 96 में डिपॉजिटरी एक्ट आया, 96 में ही आपकी डिपॉजिटरी फर्स्ट एनएसडीएल, वहीं से तो चीजें समझ में आ ही रही थी कि सब होने ही वाला है। 96 के बाद में 99 में आया आपका सीडीएस, ठीक है, सितंबर 1999 सीडीएस, एक पायोनियर दूसरी सेकेंडरी। डिमेट उस टाइम से लग गया डिमेटलाइजेशन सारी लिस्टेड कंपनीज पे, फेजेस में आया स्टॉक अपना लिस्टेड कंपनीज का लिस्टिंग एग्रीमेंट के हिसाब से। इसी में ही एलओडीआर 2015 में लास्ट कर दिया पब्लिक कंपनीज के लिए कि 2019 में सब कंपनीज का शेयर्स जो लिस्टेड है डीमेटलाइज्ड कंपलसरी, इसके बाद में फिजिकल होगा ही नहीं। उसके पहले 2014 में
पब्लिक लिमिटेड कंपनीज को बोल दिया कि यू मे इशू योर सिक्योरिटीज इन डिमेटेरियलाइज्ड फॉर्म। इनमें हुआ 2019 लास्ट डेट, उधर 2014 में चालू हो गया, 2018 में उसको कंपलसरी कर दिया। 4 साल दिए, 4 साल में कुछ रिजल्ट नहीं निकला। हाँ, मे लिखा था तो मे वाला तो हम लोग एक्सेप्ट करते ही नहीं है, मैंडेटरी लिख दो तो हम करना ही पड़ेगा तो 2018 में कंपलसरी आया, पब्लिक कंपनीज हो गई, पर फिर भी बहुत छोटा एरिया। हाउ मेनी लिस्टेड कंपनीज, हाउ मेनी पब्लिक कंपनीज। गवर्नमेंट को जो इंटेंशंस थे रेगुलेटर के वो उतना नहीं हुआ, कंट्रोल हुआ ऑफ कोर्स। मार्केट में लिस्टेड कंपनीज का अपना ही काम था, जो चीजें हुई उस टाइम उनको कंट्रोल करना के लिए रेगुलेटर को कंपलसरी, और बहुत सारी चीजें निकल के भी आई, बहुत सारे लोगों को फायदा भी हुआ, जो जनरल पब्लिक थी जिनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था, उन चीजों पे हम बहुत लाइन अप हो गए। लेकिन फिर भी एक जहां तक मेरे पास डेटा है, अक्टूबर 2023 आई थिंक, करीब 26 लाख कंपनियां हैं, उसमें से एक्टिव शायद 17-18 लाख होंगी, उसमें से हार्डली 1% आप पब्लिक लिस्टेड कंपनी और पब्लिक लिमिटेड को निकालो। आज भी मेरा मानना है कि उसको ब्रेकअप करते तो करीब 16 लाख के करीब प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां हैं, जो डेटा मैं गैदर कर पाई हूँ। बट उसमें से स्मॉल कंपनीज आप कितनी निकालते हो उसका एक अपना क्राइटेरिया है, बट स्टिल अ बिग स्ट्रीम जो है, जिसको लॉ चाहता था, रेगुलेटर चाहता था कि ये इतनी बड़ी इकोनॉमी चल रही है और इसके पीछे कौन, इसका मालिक सब क्या अच्छा, ठीक है। दिस इज व्हाट द इम्प्लीकेशन ऑफ द प्रेजेंट अमेंडमेंट, कि अब तो मुझे जानना ही है कि कौन वो कौन तो वो चीज इन्होंने मेन यही है। दूसरा इसमें ये है कि कंपनीज आ गई आपकी, और साथ में आ गए सारे केएमपीज, जिनको कंपलसरी कर दिया है। केएमपीज प्रमोटर डायरेक्टर, मतलब आप ये समझ लो 75 मोर देन 75% शेयर होल्डिंग तो क्लियर कट है हमारे पास। हार्डली किसी ने किसी को, बैंक को किस मतलब यदि क्या बोलते हैं उनका आपस में वो रहा होगा जॉइंट वेंचर जैसा, तो कुछ शेयर्स किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को गए होंगे, उसमें भी हमने बोला कि आप एनएसडी या उससे करवाइए, तो वो सारी चीजें आने वाली। और जहां तक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन यदि आपका बाहर का है तो दे आर वेरी पर्टिकुलर टू फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशन। वो तो कुछ भी, उनको तो सबसे पहले चाहिए कि रूल आया नहीं उसके नेक्स्ट डे मेरा काम करके दे दो, मुझे ये नॉन कंप्लायंसेस चाहिए ही नहीं कुछ भी। जो करना दे विल गिव यू द डेट, वो आपको आगे से लिस्ट भेजेंगे कि कंप्लाई, ये रेगुलेशन आ गया, आप लास्ट डेट का क्यों वेट कर रहे हो। मेरी तो इमेज इसके साथ में जुड़ी, क्योंकि पैसा दिया है तो ऑब्वियसली वी हैव टू दिस थिंग। तो ये उसी में फिर ये सारी चीजें आ जाएगी आपकी, जो सिक्योरिटी होल्डर्स आ गए, मतलब आपने सारे जो केएमपीज प्रमोटर डायरेक्टर्स का ले लिया तो 75-80% सारा क्लियर हो गया। हार्डली किसी को दिया होगा, कभी एम्प्लॉइज को प्राइवेट कंपनी इशू कर देती है जो ट्रेसेबल नहीं है, या उनका क्या होगा, तो उन चीजों को आप छोड़ सकते हैं। बाकी सारे शेयर होल्डर्स कवर हो जाएंगे, सारी कंपनियां आपकी जिन पे ये एप्लीकेबल है ऑन द लिस्ट आ जाएंगी। कंप्लायंसेस की बात हम ऑलरेडी देख चुके हैं।
सब एक्सपर्ट को काम है। मुझे तो ऐसा लगता है बस आप प्राइवेट कंपनी देखो कि भाई ऐसी भी है कि कई लोग तो कंपनियां बना के भी भूल गए हैं, तो अब टाइम आ गया है कि भूलो मत, बंद करवा लो इनको, बंद करवा लो, नहीं ऑपरेट करनी है तो कम से कम मुझे स्टॉक ऑफ का काम तो दे दो, कम से कम वो प्रोसीजर तो चालू करूं मैं, या तो इसको ऑपरेट करा लो और या फिर इसको बंद करा लो, क्योंकि अब वो टाइम नहीं है कि चला जा रहा है चले जा रहे हैं, जो भी है ट्रांसपेरेंसी ऑन द फ्रंट आना ही चाहिए। बेसिकली दे वांट टू नो अल्टीमेट बेनिफिशियल ओनर कौन है हर एक कंपनी का, यस किसके पास बेनिफिशियल ओनर बिल्कुल नहीं, शायद intention हो। उसमें report है ही है। वही बट वो तो जो मतलब हम जो शेल कंपनीज की बात करते थे ना, वो शेल से अब निकलना पड़ेगा, टाइम आ गया, अब आप That is ज्यादा the real intention. AIS रिपोर्टिंग भी तो है Exactly. ऑफ मार्केट oh my yes yes ना ऑफ मार्केट। चैलेंजेस और इश्यूज हम तो शुरू से ही बात कर रहे हैं, कंपनी मिलेगी, सर्टिफिकेट मिलेंगे तो हम काम कर लेंगे, क्योंकि आइजिंग भी ले लिया, सब कुछ कर लिया, पर कराऊं किसको? प्रमोटर के, डायरेक्टर्स के शेयर सर्टिफिकेट तो है ही, कराऊं किसको? तो सेकंड मेरी कंप्लायंसेस कैसे होगी? रूल 9B1 सब रूल 2 वो कंप्लाई कैसे करूं? ठीक है, तो ये जो है ना उसको ढूंढने में, और ये जो हमने अभी इतना बड़ा प्रोसीजर देखा कैसे क्या करना है, उसमें लास्ट मोमेंट में ऐसा हो जाएगा ना कि 18 मंथ भी नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी 8 महीने निकाल दिए, 10 महीने दिए थे, 2 महीने में चीजों को समझने में लगा दिए, और अब बाकी के टाइम में ढूंढने में लगा रहा हूं, करूं कैसे? तो ये अभी देखिए जो अभी आप बात कर रहे थे ना, 2 बार आएगा मॉडिफिकेशन एक्सटेंशन ऑफ टाइम जो आप बात, तो दैट इज ओवर द माय फर्स्ट कंसर्न कि 18 मंथ्स में होगा क्या? ये एक चैलेंज है। प्राइवेट कंपनियों की जो अभी मैं स्टैटिस्टिक्स बताई है वो सोचेंगे तो आप, कुछ यहाँ है, कुछ कहाँ है, किधर है, क्या कर रही है, कौन देख रहा है, कुछ स्टेट को भी नहीं मालूम, लास्ट में बैलेंस शीट ऐड हो जाती है उसमें, तो वो प्रैक्टिकल इश्यूज जो आएंगे उसमें ये 18 मंथ्स में हम लोग कर पाएंगे? मैं 18 मंथ्स ये बोल रहा है इसलिए मैं 18 मंथ्स बोल रही हूँ, मेरे हिसाब से तो आप अक्टूबर खत्म हो गया, नवंबर से आप काउंट करिए सितंबर तक, आपको हार्डली 8-10 महीने का टाइम मिलता है, तो क्या वो 8-10 महीने में सारी चीजें उस फ्रेम में बैठती हैं क्या? जब आज इतने सालों में नहीं बैठी तो मैं 8-10 महीने में कैसे बिठाऊं? मुझे डुप्लीकेट भी इशू करना है, कुछ भी करना है, तो मुझे प्रोसीजर तो पूरा करना है ना, मैं फिर से उन्हीं चीजों में जाऊंगा, कल को दूसरा सेम डुप्लीकेट बनाने के बाद में दूसरा सर्टिफिकेट आ गया तो अब चीजें बहुत ही ढंग से करनी है, तो क्या मैं वो 8-10 महीने में कर पाऊंगा? एज ए प्रोफेशनल बहुत केयरफुली हमको चीजों को देखना होगा। जैसे अभी हम हाँ डुप्लीकेट करते हो डिस्टिंक्टिव नंबर्स वापस 1 से स्टार्ट कर सकते हैं। नहीं, तो इसमें जो जिस नंबर का सर्टिफिकेट बना रहे हैं आप, तो रिकॉर्ड नहीं है इस पर तो ये It will take you for- स्कैन कॉपी या फोटो कॉपी कुछ तो होना चाहिए, सर्टिफिकेट पे बेसिस पे इशू Income statement district number चाहिए। कुछ तो भी रिकॉर्ड या डुप्लीकेट बनाने हैं बिकॉज़ ओरिजिनल नहीं है। बराबर नहीं बट फाइनल का कुछ तो होना चाहिए। तो आपके पास वो सब ढूंढे बारिश। हाँ, तो फिर क्या? सर ये बारिश वाला वर्ड यहाँ कुछ यूज करेंगे तो वहां पे अलग प्रोसीजर जाता है, वो अलग प्रोसीजर जाता है, मतलब अब वो प्रोसीजर की गलियों में घूमना है। न्यूज़पेपर सबको काम मिलेगा। प्रोफेशनल लाइसेंसिंग वर्क होता है ना? तो ये वो मतलब, लेकिन वो 2005 का 2025-24 में कराएंगे तो उसका लॉजिक सब देने पड़ेंगे, एडवर्टाइजमेंट भी काफी, मतलब जो कंपनियां सीरियस हैं उनके तो फिर एडवर्टाइजमेंट काफी चीजें होंगी उसमें, तो
बट कैसे करना है, कितना करना है, वो हर कंपनी टू कंपनी अलग है। कितने तो शेयर होल्डर्स के बच्चे एनआरआई होंगे, हाँ, उनका भी इशू होगी, बहुत- कंपनियां बहुत ग्रो कर रही हैं। बहुत प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स आ रही कि चले गए, वसीयत भी नहीं करी, ये कंपनी थी, उनको भी नहीं पता है, मतलब जो बट ऐसे भी हैं कई कंपनीज जिनका मालिक को पता नहीं, केवल सीए संभाल रहा है सब। वो हाँ, ऐसी कंपनी, वो सीए की कंपनी। हाँ, पूरा मतलब केवल इतना उसमें चल रहा है काम, तो अब वो सीए संभाल रहा है, तब तक तो ठीक है। अब डीमेटलाइजेशन तो सेट के नाम में ही करना पड़ेगा ना। अब चीजें क्लियर होगी कि ये किसको जा रहा है, कौन कर रहा है, क्या कर रहा है, प्रैक्टिकल इश्यूज टोटली डिफरेंट आएंगे जो हमारे इसमें कहीं भी कुछ भी मेंशन नहीं है। जब आप उतरते हैं इस फील्ड में कि अब एवरीथिंग विल कम। इमीडिएट वो बोलेगा आरओसी सर्च लो, मेरे नाम में ही थे शेयर सर्टिफिकेट, दूसरे के नाम में कैसे हो गए, कब हो गए? क्योंकि वो तो यही समझ के बैठा था कि मैं ही ऑनर हूँ, शेयर सर्टिफिकेट सर्च, बैक सर्च कब हुआ? बहुत सारी चीजें, क्योंकि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी वो एरिया था जिसपे केवल हमने काम करना था, बिजनेस करना था। रेगुलेटरी में हम थोड़ा सा शांत थे कि इतनी फॉर्मेलिटीज नहीं है, कंप्लाइंसेस नहीं है, लेकिन अब उस सिचुएशन से एक जगह कंपाइल कर रहे हैं सब चीजों को। तो बहुत सारी चीजें इसमें प्रैक्टिकली आप करेंगे। तो अभी हम बात कर रहे थे इंफ्रास्ट्रक्चर की, जब पैन के लिए जाएंगे, केवाईसी के लिए जाएंगे, तो क्या हमारी सीडीएसएल, एनएसडीएल, इतने सारे लोगों का लास्ट डे पे होने वाला है सारा काम, ठीक है, ले लेगी सारा काम, वो भी एक चैलेंज है। क्योंकि इसीलिए मैंने बोला कि उस टाइम पे फिर आएंगी प्रेजेंटेशन। आज ये क्रैश हो गया, एमसीए तो क्रैश ही है, ठीक है, एमसीए तो क्रैश ही है, बिक्री तो बना तब से क्रैश है ना, एमसीए तो क्रैश ही है। तो ये जो प्रैक्टिकल इश्यूज जो है एज ए चैलेंजेस हमारे पास उस टाइम में फेस करने पड़ेंगे। मैं ये नहीं बोलती हूँ कि आप 18 महीने में मत करो, मैं तो बोलती हूँ आप 18 महीने में ही करो सारा काम, क्योंकि मैं वो होगा लास्ट मोमेंट में, क्या होगा उसको जाने दो, जो होगा। क्योंकि हो सकता है बहुत से लोग नहीं कर पाए, तो जो पिछली बार जब पब्लिक कंपनी का किया था ना, तब इन्होंने सर्टिफिकेट सेट आपसे वो लिए थे, हम जस्ट नहीं एफिडेविट्स वो एफिडेविट्स वाला प्रोसीजर हो सकता है वो यहाँ पे भी डालें कि भाई मेरा इतना हो गया है, मैं ये कर रहा हूँ, तो वो डीपी जो होगा या डिपॉजिटरी वो आपसे एफिडेविट्स लेगा कि मैं इतने टाइम में ये कर दूंगा, आप मेरे को लिख के दे रहे हो, तो पर कंप्लाई होगा, उसके रास्ते निकलेंगे, पर कंप्लाई आपको करना पड़ेगा। हो सकता है 4-6 महीने का प्लस माइनस आपको मिले, बाकी कंप्लाई करना पड़ेगा। यही जो अभी बात करी है हमने, और उसके बाद में ये केवाईसी वाला मैटर भी है। केवाईसी इसमें एक जो बात है कि नॉन रेजिडेंट को जो है इंक्रीज्ड रिक्वायरमेंट हो गई है टू ऑब्टेन द पेन एंड आल्सो वेरीफाई पेन डिटेल्स ऑफ द रेजिडेंट अकाउंट होल्डर्स। केवाईसी का ये एक बहुत बड़ा काम एनआरआई के केस में होने वाला है, जो कि कभी देते भी नहीं थे कि शेयर्स इशू किया हो गया काम। हाँ, तो ये पैन का जो काम है, मैडम they have not visited India since last 30 to 40 years। सर अब इतनी पुरानी कंपनी का रिकॉर्ड भी आपको इस बनाना है। टाइम पे आधार कार्ड तो कहाँ से आएगा, पैन कार्ड ये तो आधार आधार केवाईसी के लिए उनका पैन चाहिए, तो वो सब तो अब आना पड़ेगा ना, वही बात है। DRC मांगेंगे टीआरसी की रिक्वायरमेंट बैंक में है, तो वो उधर भी जाएगी, DRC मांगेंगे तो सही, वो उसमें दे सकते हैं। डिविडेंड के ऊपर। हाँ एकदम, क्योंकि केवाईसी के बिना तो कोई काम होगा ही नहीं। केवाईसी मतलब पेन लेके आओ, पेन कौन लाएगा, हम लाएंगे, ठीक है, बराबर है ना, प्राइवेट कंपनी और हम, बस
सी ऑफिस का सब टारगेट खत्म हो जाएगा प्राइवेट। पक्का ना? मेरा नंबर ऑफ कंपनीज है, तो हमको बस थोड़ा सा जगना है कि किधर, बस। At least main gate of the NSDL, Yes. CDSL and transfer agents. हाँ, At least वो खुल गया तो धीरे धीरे सब आ जाए। मैं जहां तक, हाँ ये तो आप अभी के लिए बोल रहे हो, जहां तक मैं देख पा रही हूँ ना, स्पाइस का जो फॉर्म आया था जब स्टार्टिंग में आया था, तो केवल हम प्रोफेशनल्स के लिए था, सीए CSIS रिव्यू हम लोग ही कर रहे थे। बाद में उसमें उन्होंने लॉयर को भी ऐड किया, ठीक है। स्पाइस के फॉर्म में अभी आई थिंक 25 लाख रुपीज यदि पेड अप है, तो आपको कंपल्सरीली आपके बैंक का नाम देना जरूरी है, विच वॉज नॉट देयर अर्लियर। मतलब इसका इम्पैक्ट क्या हुआ इस रूल के आने के बाद में? जहां तक मैं देख पा रही हूं, अब जो आप कंपनी बनाने जाएंगे, आपको वहां पे आपका आरटीए का नाम भी देना पड़ेगा। स्मॉल कंपनी ना। नहीं, वो मैं उन कंपनियों की बात ही नहीं कर रही हूँ, मैंने शुरू से एप्लीकेबल वर्ड बोला है। यदि आप उन कंपनियों के लिए जा रहे हैं और आप स्पाइस फॉर्म भर रहे हैं, तो सबसे पहले वो वहां पे बैंक के साथ में पूछेगा हु इज योर आरटी, क्योंकि मैं तो कैपिटल डीमेट भी इशू करूंगी। मतलब दिस इज व्हाट इट इज। जो मैं देख पा रही हूँ वो ये चीज है कि अब क्या होगा कि अब आपका टारगेट हो गए आरटीए। डॉक्टर लिखा अब आपका टारगेट क्या हो गया? आपका टारगेट हो गए आरटीए। जितने अच्छे से आप आरटीए की सर्विसेज को अपने साथ में कोलैबोरेट करेंगे, जितना ज्यादा आप सामने वाले को कंफर्ट लेवल देंगे, वो आदमी वो, क्योंकि वो आरटीए के साथ जो काम हो रहा है वो भी लाइफ लॉन्ग है। आज मैं इशू कर रहा हूँ 6 मंथली पेस, मैं पेस फाइल कर रहा हूँ, पेस के लिए रिपोर्ट तो मुझे आरटीए ही देगा, बैंक पोस्ट तो मेरी आरटीए से आएगी, कॉर्पोरेट एक्शन मुझे एग्जीक्यूट करना है, आरटीए के पास में जाऊंगा। तो आपकी रिलेशनशिप किसी भी आरटीए के साथ में किसी भी क्लाइंट को बहुत ज्यादा फैसिलिटेट करती है। वो जो सबसे बड़ा मेन हमारा लाइजरिंग का पॉइंट होने वाला है अभी भी और लॉन्ग टर्म में भी, क्योंकि स्पाइस में आप मान लीजिए, मैं तो आज बोल रही हूँ, कभी होगा मुझे पता नहीं है, क्योंकि वहां पे भी बैंक अकाउंट की डिटेल अब तो लेने लगे, मांगने में टाइम लगा, स्टार्टिंग से नहीं आ गया वो Never open the account yet. They're asking the details. डिटेल। But then So subsequently same- you want to open the bank. सेम चीज यहाँ पे भी वो आरटीए का नाम आपसे मांगेंगे। इसके लिए क्या होगा कि जिस भी आरटीए के साथ आप कंफर्टेबल हैं, उसके साथ में आपको उसको जो है एक लेटर या जो भी है कि मेरा ये कंपनी है, मैं करूंगा, उतना करना है। पर वो चीज अब एक नया एरिया, जहाँ पे पहले कंपनी सेक्रेटरी मेरे ख्याल से ज्यादा थे अब तक, वहां पे क्योंकि कंपनी तो आप भी बनाते हैं, वो एक चीज जो है वो पे हम लोग और कॉन्सर्ट, ये मैं थिंकिंग है कि ये होने वाला ही है, क्योंकि अब तो कैपिटल फिजिकल में आने ही वाली नहीं है। अब जो आएगा वो तो सब डीमेट में आएगा। इवन मैं आप जो बात अभी तक हम जो स्मॉल और उसकी बातें कर रहे हैं ना, मैं तो उससे भी आगे हूँ कि क्यों नहीं हम स्मॉल की भी यदि बन भी रही है तो इसमें लाए, क्योंकि आगे वो भी आने वाली है, वो भी आने वाली है। ये जो 91 से सर्कल चल रहा है ना, अच्छा चला है बहुत, एक किस ढंग से इन्होंने सबको लिया है, और प्राइवेट कंपनी को तो मे का चांस ही नहीं है सीधा अंदर, कि क्यों कि पूरा डेटा ही नहीं आ रहा है ना, बाकी की कंपनियां तो हार्डली है, यहाँ पे मे का चांस ही नहीं है सीधा। तो अब जो होने वाला है कि अब जो मैं कंपनी फॉर्म कराऊंगा, रेगुलेटर का इंटेंशन अब मैं कराऊंगा, वहां मुझे सीधा आरटीए का नाम चाहिए, क्योंकि तुम तो कैपिटल डीमेट में ही देने वाले हो ना, तो आरटीए का नाम दो। तो ये अपना एक जो हम प्रैक्टिकली काम करते हैं उसमें ये चीज अच्छे से हम लोग यूज कर सकते हैं। अभी आपने कुछ पूछा था मर्जर और एमलगमेशन वाला, राइट? तो वो वेंडिंग का बिल्कुल वो मैं एक ही मान रही हूँ, क्योंकि मर्जर में कोई कंपनी यदि बंद भी हो गई है, दोनों का इम्पैक्ट आने वाला है।
तो ये इम्पैक्ट आएगा, ये ऑलरेडी मैंने अपनी इसमें नोटिफाइड किया है शायद इसमें केवाईसी लॉजिस्टिक चैलेंजेस का एक मैं आपको थोड़ा बोला है मैंने, पैन तक हम गए हैं, रेजिडेंट का मैंने बताया, इन्फ्रेक्शन बोल दिया। लॉजिस्टिक चैलेंजेस का ऑलरेडी मैं हम काफी देर से कि कोई डाइड हो गया है या नहीं है, बहुत सारे पैन आ गए हैं, पैन ही नहीं है। तो ये जो 18 मंथ्स के 10 मंथ्स का फ्रेमिंग है, इसमें कैसे चीजें घूमेगी, कैसे हमारी सबऑर्डिनेट जो अथॉरिटीज हैं वो कैसे इस चीज को कंप्लाई कर पाएंगे, दिस इज द मेन क्राइटेरिया। ठीक है, और इसमें जो आप बोल रहे हैं वो ऑलरेडी मेरा खुद का कंसर्न है कि which would in turn impact the timelines of merger and acquisition and private equity transaction as well, जो हमारी टाइमिंग फ्रेमिंग में आ रहा है, जो उस टाइम पे आ गए हैं। तो ये इसमें एक हो सकता है कि जो हम एफिडेविट वाली बात कर रहे हैं, दिस वाज हैपेंड इन पब्लिक लिमिटेड कंपनी एज वेल, तो आई एम टेकिंग द सेम कंसर्न ओवर हियर कि जब वहां पे ये हुआ था, क्योंकि वी हैव द प्रीडिसीडेंट विद अस, तो प्राइवेट कंपनी के टाइम पे उन्होंने ऑलरेडी ये जगह जगह पे एफिडेविट्स लिए थे, हालांकि प्राइवेट कंपनी में मे का चांस नहीं दिया है, तो चीजें बहुत ज्यादा रेस्ट्रिक्टेड है हमारे पास। पर जो जहां पे प्रैक्टिकल चीजें, जहां कोर्ट्स इन्वॉल्व हैं, जहां अदर रेगुलेटरी अथॉरिटीज इन्वॉल्व है, वहां पे 100% आपको कोई ना कोई वो, हाँ बिल्कुल। नॉमिनेशन और उसकी मैंने बात ही करी है ऑलरेडी कि डाइड हो गया है तो कैसे करेंगे, सर्टिफिकेट ढूंढना है हमको, क्या करना है। शेयर्स जब नॉन ट्रेसेबल हैं वो लिया है, इश्यू डुप्लीकेट हो गया। हो गया मिनट, हाँ अच्छा। हाँ हाँ एक मिनट, मैंने क्वेश्चन भी ले लिया। हाँ ठीक। एक और जो चीज आई है ना इन बिटवीन में, रूल 9B, जब हम रूल 9B की बात कर रहे थे तो एग्जम्पशन हमको दिया था स्मॉल कंपनीज और गवर्नमेंट कंपनीज, ठीक है। ये थोड़ा सा ट्रिकी एरिया है जिसको मैं ऑब्जर्व कर पाई हूँ, बाकी कितना ऑब्जर्व कर रहे हैं या रेगुलेटरी इसको कैसे देख रहा है, वी हैव टू वॉच। क्लियर, रूल 9B में 2 जनों को दिया, 9A में 3 को दिया, क्यों? Only on subsidiary we exempted. कहाँ पे? 9A में, रूल 9A, that is for public limited companies, the compulsory dematerialization। And only on. आप थोड़ा लेट आए थे ना, तो हम कुछ स्लाइड्स निकाल चुके थे जिसमें हमने रूल 9A 9B को सेपरेटली किया है। रूल 9B which is applicable to the mandatory company mandatory dematerialization of private companies, there is only 2। Rule 9A is applicable mandatorily dematerialization for public limited companies, ठीक है। वहां पे इन्होंने निधि कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी और होली ऑन सब्सिडरी, ये यहाँ का मैं क्या करूं? हाँ, दैट इज इन पब्लिक कंपनी, ठीक है। ये ग्रे एरिया है, मैंने जितना ऑब्जर्व किया है, आई डोंट नो कितना क्लियर होगा वो। 9B में it will attack given the wholly subsidiary company. हाँ 9B it will attack 9B. हाँ, देखते एक मिनट, हम इसका सीक्वेंस देखते हैं। ये हो गया तो आगे बढ़े, ठीक है। ये देखिए स्टैटिक्स,
ठीक है, क्लियर है ना? मतलब ये जो लास्ट वाला है इसका क्या होगा, ये मैं खुद अभी श्योर नहीं हूं क्योंकि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन 9A एंड 9B। पॉजिटिवली मैं जिन कंपनियों को देख रही हूँ, मैं ये मान रही हूँ कि गवर्नमेंट तो ये चाहती है कि प्राइवेट कंपनी कैसी भी है, यदि वो स्मॉल नहीं है तो मुझे डीमैट कर दो। तो मैं एज ए प्रिकॉशनरी मेजर कर रही हूँ खुद, क्योंकि मैं किसी भी पेनल कॉन्सिक्वेंसेज में उसमें नहीं जाना चाहती। बट एज सच लॉ इज कंसर्न, दिस इज अ सिचुएशन। और मेरे ख्याल से जो हम अभी प्रेजेंटेशन और उसकी बात कर रहे हैं उसमें ये कहीं ना कहीं जाएगा। मैंने और भी लोगों से डिस्कस किया है, तो थोड़ा सा इसमें है कि नहीं समझ में आ रहा है जो इस टाइप की सिचुएशन है हमारी, तो कुछ ना कुछ उसकी क्लैरिटी आ जाएगी। यदि पब्लिक कंपनी के लिए है तो प्राइवेट तो पहले फैसिलिटेट होनी चाहिए, बट फॉर ज्यादातर मैं सब कंपनियों में यदि प्राइवेट है तो मैं तो करवा रही हूँ डीमेट, और आगे पीछे तो नहीं है। थोड़ा सा टाइम और भी ले लोगे तो क्लैरिफिकेशन आ जाएगा, आपको तो जाना ही पड़ेगा। तो मुझे पैनल कॉन्सिक्वेंसेज नहीं चाहिए, इसलिए मैं ये करवा रही हूँ। जो अभी आप क्वेश्चन सारे किए थे वो मैंने पूरे इसमें कवर किए। They will be sharing the details. ठीक है सर, बहुत डिस्कशन किया, बहुत सारी चीजें निकल के आई, है ना? मेन तो गवर्नमेंट क्या चाहती है वो कर ही लेना है अभी, बहुत सिंपल है। ट्रांसपेरेंसी, और जो शेल से बाहर निकल के आ जाओ, और जो ब्लैक मनी आप शेयर सर्टिफिकेट दूसरे के नाम से ले रहे थे, सब कर रहे थे, अब बंद, ऑनरशिप उसी को चली जाएगी। ठीक है ना? यस यस, ठीक है ना? बहुत सारी चीजें हैं, मतलब जब आप डीप में करने जाएंगे तो बहुत सारी चीजें। आई होप कि मैंने थोड़ा बहुत भी कुछ करने की कोशिश करी है, और थैंक यू ईच एंड एवरीवन। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू फॉर बीइंग विद मी एंड गिव मी एन अपॉर्चुनिटी। थैंक्स। ये बोला April 24 के बाद और भी आना है। तो कुछ बोल रहा है। He's confident. More regulation. और और कुछ बड़ा ऐलान करने वाले हैं सब। अयोध्या नहीं जाके बात चारा नहीं रहेगा। कॉम्प्लायंस की भी बड़ा रोल है। नहीं स्टॉप शेयरिंग तो किया ना? So, good evening, everyone. So the great investment guru Warren Buffett, he said that the stock market is a device for transferring money from the impatient to the patient. Yes. Correct? So the government is now very proactive in looking after the interests of the investors through various regulatory bodies, and it is coming up with various numerous rules, regulations, and compliances. Now, demat of shares in private companies is just one more step in this direction, right? So we thank our knowledgeable speaker for the day, FCS Sanjeev Lata Samdani. Now, who took us through the various technicalities on the subject with such ease
and she dealt with the various rules, intricacies, and practical points to consider, etc. She also pointed out that there are numerous professional opportunities which we can take benefit of. Thanks, Management of Direct Lifelix for smooth conduct of today's seminar. Would be my mind? And also thanks to the members for being present today and participating actively and making the program a success. Yeah, very lively. Yeah. So on behalf of Devi Nagar Study Circle, I request you to please carry a loud round of applause as a token of appreciation for our ladies. And also today is the birthday of our convener, CA. So please join me in wishing a happy birthday and a long life. Thank you. Yes. Happy आपके बालक का बर्थडे क्या पहले मालूम रहता था केक So please join for snacks and tea. मुझे दे रहे हैं तो वो कुछ नहीं नहीं we could have brought it for you हाँ, पता होगा।